Hey Kashish. Hi everybody else. Good to see you guys there. Well, let's get started. I'm so sorry there was a little bit of glitch with OBS and I was just trying to get that resolved. That's why I started late. My apologies, guys. Sabyasachi, I hope you're there. Thank you so much for waiting. Guys, welcome to this session. This is our AIMT analysis, the AIMT that we did on 30th October. And before I get started with the analysis, on the VARC section, I would like to give you a quick reminder. Good afternoon, Indraneel. The reminder is, of course, you guessed it right. It's for AIMT, which is going to be there on 6th November. इस महीने नवंबर में तो तीन तीन है. It's like every Sunday you're going to get one rocking AIMT. आप में से कोई ऐसा भी है जो सोच रहा है AIMT है क्या? If you're a new learner, AIMT is All India Mock Test. So for your CAT that is coming up in November, you have these AIMTs, All India Mock Tests, which are curated with a lot of expertise. And you need to just get started with these tests. Take these as baby steps. Yes, Sabyasachi, good to see you there. Okay, so get enrolled, guys, and please do take the test. So 30th October वाला, yes Pavitra, 30th October वाला कैसा हुआ था आपका टेस्ट? I'm going to show you the questions. We are not going to discuss the questions and answers as such because वो तो आपने explanations में देख ही लिया होगा. You need to understand the level of the test, how you could have taken it in a better way. Yes, Pavitra. Do you have a doubt, Sabyasachi? Okay. Chalo then. So if you all have enrolled for the one which is coming up on 6th November, I'll take you over to the one which we did on 30th. Hang in there, guys. Right. Got it. Yes, Sabyasachi. Hi, Aditi. So this AIMT we did on 30th October and इसका VARC section का analysis हम करने जा रहे हैं. TTTF में Sabyasachi, all right, fine. I'm coming to that portion a little later. Just hang it. Now, how many questions did we have? As expected, there were 24 questions and ऐसे ही आएगा आपका breakup. इसमें भी exam में भी आपका ऐसे रहेगा. There were 16 RC questions and 8 VA questions. RC questions are kind of, I feel you should go for RC questions first because the answers are very much there. Verbal ability में क्या होता है कि some of you have this problem with parajumbles. You've got this mental block. You feel short summaries हो जाता है आसानी से. Parajumbles or not completion. What is that? Odd one out. Parajumbles and odd one out में you guys get stuck. Let's try to understand this first. There will be 5 questions of parajumbles and odd one out. And all 5 questions will be theta. So when I say theta, it is you have to type in the answer. Type in the answer means there will be no negative mark. So what my suggestion is, you can just take those questions, without spending too much time on them, you should mark the answers for sure. And for those of you who are very good in PJ, you should give a little bit of extra time and do those. Yes, Sabyasachi. So RC 16, VA 8. And in this particular test, that was on 30th October, there was a very good mix of questions. Like I'm just going to take you over to the 4 passages first and I'm going to show you kitna isme kar sakte the, kitna nahi kar sakte the. So before we go over to those questions, let me tell you one thing here. There are 2 big ways of taking the test. So one is take the low hanging fruits in the first round. 2, 2, 2, 2. This is what I call 2, 2, 2, 2 technique. Okay, Sabyasachi, good. So 2222 means all the 4 passages are there. What do? First passage, 2 easiest questions you pick. Second passage, 2 easiest questions. Third and fourth similarly. So you do a total of 8 questions from these 4 passages and forward.
These 8 questions should be done in a total of 15 to 20 minutes, not more than 20 minutes. And there is one thing that I always say over here, go for the hustle step in the first 10 to 15 minutes. होता क्या है generally, like students sit आराम से and they do the questions आराम से in the beginning. Then later when they check the time, they realize, oh ho, खाली इसमें ना 15-20 मिनट बच गए, कैसे होगा इस 15-20 मिनट में, and then they start panicking, खत्म, उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाता. So my strategy over here is do a little bit of quick work in the first 10-15 minutes. Go for that hustle. 10-15 minutes में आपके अगर ये 2-2-2-2 जो मैं बता रही हूँ ना, if you are able to complete these 8 questions in the first 15 minutes, you will be able to crack the paper very easily. Fine. So या तो वो 2-2-2-2 आप करेंगे 8, and then you go to VARC and you pick 3 to 4 questions from there, then come back to RC for the remaining 2 or 3 questions. So you are targeting 8 plus 4. 2 short summaries, 2 parajumbles, मान लो आपने कर लिया 4, 8 and 4, 12, and come back to RC for 2 more. 14 questions with a good accuracy level. So 14 questions में अगर आपका एक wrong भी हो जाता है, you'll be able to get some kind of good score. The other strategy, the other big strategy is you can go for 3-3-3. Let's say you're very scared of attempting 4 passages. Passages देखते ही आपको पसीना आता है. So you can go for 3 passages, but please do not select your passages based on genre. Please select your passages based on questions. I have done courses in my plus classes, and I have shown students how to select passages on the basis of questions. So आपने select कर लिए 3 passages, 3-3-3. 9 questions you did, and this should take you not more than 20 minutes. 20 minutes में 9 कर लिया आपने. Then you go to verbal ability. वहां से आपने 3-4 questions किए, 4 pick करना, ideal. 13 हो गए. And if you're left with 5 minutes in the end, go for 1 or 2. So 14 to 15 questions you are targeting, right? For those of you who feel that you can do many questions and then ठीक है चलो उसके बाद you're going to get 3 to 4 wrong. हर हाल में wrong होगा. Okay, fine. Step up. Go for like a higher number of questions. I would suggest 20. 19 to 20 आप कर लो. उसमें से अगर आपके 4 भी wrong होते हैं 19 to 20 में, 20 आपने attempt किया, 4 wrong हो गया, 16 आपके पास बचे, 16 3s are 48, 48 minus आपके 4, 44. 44 is a very good score. Yes, Kashish. And when we talk about selecting questions, you are supposed to select questions on the basis of like, what type of question it is. Like specific info questions are the easiest. Then I would go for main idea, tone, title, ye wale sare. I would keep critical reasoning and true false questions for later. So let's take a look at the 4 passages and unka questions ka division kaisa tha. So you will get a clearer idea. कौन सा आपको करना चाहिए था, कौन सा नहीं करना चाहिए था. I feel CAT is totally a game of time management and question selection. ये दोनों काम आप ठीक से कर पाएंगे, only then will you be able to apply the techniques. Students techniques के पीछे इतना भागते हैं कि they forget that they have to actually form a strategy and they have to select questions properly. So if I select the wrong questions in this paper, I'm going to spend a hell lot of time doing these questions. I will miss the boat. So let me take you over to these questions, the passages. Vanshika, low if I attempt 14. Okay, I'm coming to that, Vanshika, a little later. Let's see. The first passage was on Big Bang and how new universe is created, or how it should be created. Scientific. All right. Question number 1 was, what is the underlying assumption for the claim made in the 3rd paragraph? Assumption question, that is critical reasoning, yet it was easy because it was related to a specific paragraph. फिर भी मैं कह रही हूँ, if you get the jitters seeing critical reasoning question, this is not a low-hanging fruit for you, so I would leave this if I'm following my 2-2-2-2 technique. Fine. Question 2. What is the overall tone of the author? Very, very easy type of question. This is my number 1. I would go for this. Number 3. Which of the following can be inferred from the passage? This is not specific inference. It is random. You have to pick the options and verify. Okay, I'm going to keep it for later. Question 4. Why does the author talk about his students at Harvard University?
Now, if the whole passage is on Big Bang and new universe creation, obviously this Harvard University is a specific point mentioned in the passage. So please take a moment, check this question, kahin pe to specific hoga, and select this in your first round. So from this passage, I would select questions 2 and 4 because I would be able to do these questions very, very, very fast. Remember, in the first 15 minutes, I have to complete 8 questions as the big hustle. Passage 2. Let me show you this. It was on Dante and Divine Comedy. Okay. So question 5 was, which one of the following best explains the purpose of para 3 in the passage? That means you're looking for something specific. Purpose of para 3. Has it been given to support an earlier made point? Has it been given to contradict that, to refute that? So this becomes easy. However, let me see if there are other better questions. Question 6. Which one of the following, if true, would not undermine the argument? Critical reasoning. Later. Question 7. On the basis of the passage, which one of the following worldviews can be inferred to be closest to that of Dante? General. Dante ka to pura passage hai, right? Keep it for later. This is not difficult, but then it's going to take time. Next, question 8. The author of this passage is using this text to teach a university course. Which one of the following is least likely to be the title of the course she teaches? Now, if I am doing 3-3-3 wala technique, I am going to leave this passage in the beginning because its questions are not specific or not that fast wala types. Got it? So 2-2-2-2 may still I'm going to select 2 questions here. I'll show you which ones. But 3-3-3, only selecting 3 passages may I'm going to skip this passage and I'll keep it for maybe later. However, now I'm doing 2-2-2-2 technique. So इसमें से कौन सा select करेंगे? I'll go for question number 5 because it's very specific, related to one paragraph. Yes, Sabyasachi and Vanshika and Ankit. Well, question 5 is very doable and you can take it out in 60 to 90 seconds. Then question 6, critical reasoning रहने दो भाई, पूरा general है. Question 7. Question 8 में एक बार ये तो देखते हैं है किस type का question. So question 8 says, is using this text to teach a university course. So what is this text about? Title of the course. Obviously, that's going to be connected with your main idea, primary purpose, and title summary. So I'm going to attempt question 8 because if I kind of, nail the main idea and if I go with the title, I'll be able to solve this question. Take a 90 to 120 seconds lagega, but then it's going to be worth it because it's a question which is pretty doable. Got it, guys? So 2-2-2-2 में Sabyasachi, questions 5 and 8 from this passage. I'm taking you further now to passage 3. That was Hollywood's economic future. Now let's check the questions. What inference can be obtained from the raindrop instance? Very specific. Yes, I can do this. Question 10. What is the inevitable certainty that makes the author feel agony? I'm going to pick keywords from here. Inevitable, agony. In the passage, I'm going to look for these words, or maybe if not these words exactly, some synonyms. Inevitable, something which is imminent, maybe. So, question 10 can also be done. Question 11. Why did the author use the analogy of a Silicon Valley venture capitalist? This is going to be super easy because this is very specific. Question 12. The writer would agree with the following except. True, false? It's going to take me time. I'm going to keep this for later. So from this passage, I'm going to pick questions 9 and question 11. Questions 9 and 11 are the easiest from this passage. उसके बाद अगर मुझे वापस आना हुआ ना after VA, I'm going to come to this passage and pick question 10 also because that is again a little bit specific. You got my point? Sabyasachi and Vanshika, Ankit, Kashish. ठीक है? So abhi I'm doing 2-2-2-2. So from passage 3, I will pick questions 9 and 11. However, later when I come back, I'm going to come to this passage and to question 10. How will I remember that? I note it down on my scribbling sheet. Passage 3, question 10. Come back later. All right.
Moving on to passage 4. Yes, Sabyasachi. That was on David Hume's philosophy on human nature. Please be prepared. Every sitting will have one philosophy passage. I mean, this is what we expect. अगर उनको दया आ गई तो नहीं देंगे हो सकता है. But then there's another mental block over here that you need to get rid of. Philosophy passages are not always heinous. You need to select your passage on the basis of questions. So just yesterday, I did one session on YouTube and I showed one philosophy passage from 2006. It was a very dense looking philosophy passage, but the questions were very doable. There were 4 to 5 questions and all were pretty cool. So please get rid of this mental block. And David Hume's philosophy on human nature is में कैसे questions थे? Let's check. What advice from the first paragraph does the writer insist to take from the 18th century? अब इससे ज़्यादा specific और क्या बन सकता है? So I'll take question 13. What was the difficulty faced by David Hume in making himself known as a public intellectual? The whole passage is not on public intellectual or the difficulties that he faced. That is going to be specific. Question 15. What conceived notion does he challenge? There will be a specific part in which he will stand up against some widely accepted notion. People follow this particular thing and he will challenge it. So that again is specific. Question 16. What can be inferred from the final para of the passage? Whoa. So this passage is my sone ke ande dene wali murgi. So I quickly scribble, okay, I'm going to come back to this passage. Passage 3 में question 10 मैंने mark किया था, come back, and passage 4, very good. I'm going to come back. अभी 2 pick करना है. The easiest ones that I'm going to take are question 13 and इनमें से आप एक कोई pick कर सकते हैं जो आपको आसानी से मिल जाए. All are specific. Got it, guys? And the remaining, we'll come back for those. So what I have done now is I have attempted 8 questions, Sabyasachi, with good accuracy. Like 2 minutes per question bhi agar main deti hu. So kitna hoga mera? 8 to the 16 and then I attempted like thoda reading karke. Why? Because I was just going with the specific questions. So I did not read the passages like completely. Okay. So per passage, I should have given 90 seconds, 1.5 minutes per passage. Okay? So that makes it 6 minutes and 8 minutes for the question. Okay? So 14 to 15 minutes may I'm done with my 8 questions. That is the low hanging fruits with almost 99% accuracy. मेरी तरफ से मैंने अच्छा कर दिया है. अब देखेंगे इसके बाद. Then after this, I would go to verbal ability. And in this particular paper, there were very easy short summary questions. I would like to pause here and tell you something about short summary, Vanshika and Kashish. Short summaries are generally doable. But yes, CAT has this tendency of giving you paragraphs which are pretty dense. Like for those paragraphs, you definitely need a good vocab. Vocab कैसे बढ़ेगा? मेरा Let's Crack Verbal का एक channel है. Okay, of course, Unacademy का ही है. And उसपे I come up with word of the day. You have to check those words out to believe it actually, because उसपे मैं क्या कर रही हूँ? The words that you're likely to encounter in RC passages are being given. So that is one way of building up your vocabulary. Even now you've got like 20 to 25 days. You can just kind of keep visiting those sessions and keep building up your vocabulary there. आपका कुछ ना कुछ तो benefit होगा ही होगा. Fine. So coming back to this, I was saying short summary में CAT gives you dense paragraphs. And उसमें vocabulary अगर नहीं है आपकी, थोड़ी सी भी नहीं है, तो you're going to get stuck. However, if you have got a base level of vocabulary, you can just manage your way around. Then you can easily do CAT ka short summary paragraphs, because elimination is super duper easy in those 3 questions. I have seen this over the last 5 to 6 years. Okay, the only thing you need to do is revise your techniques for solving short summary. I have done 2 or 3 courses on short summaries, and you can go over to my plus courses and check short summary के techniques बहुत detail में करवाए गए हैं. Just pick those, make a list of your short summary techniques, how to map the paragraph, how to pick the keywords, and how to kind of see
कहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन्स है, विच जोन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, जो आंसर में आएगा ही आएगा. बस रिवाइज कर लो टेक्निक्स एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू सॉल्व दो शॉर्ट समरी क्वेश्चंस. सो इन दिस पेपर कशिश स्पेशली those short summary questions were very doable. So यहाँ से 8 करने के बाद I would go to those questions. Yes, Kashish, for these 8 questions, you do not need to read the whole passages. Please come out of that old school of thought. हम क्योंकि easy वाले pick कर रहे हैं, so for every question, जैसे एक passage के 2 questions solve करने हैं मुझे, 8 करने हैं total, I would go back to the passage, Kashish, pick the main idea. Just pick the main idea and the specific zone where that question is located. So I'm telling you, it should not take you more than 90 seconds per passage. 90 भी नहीं लगता है कभी कभी. And then 2 minutes per question आप devote करेंगे तो भी in 15 minutes you can come up with 8 solid answers. Okay, so after that I would go to short summaries. Even in the CAT, I would go to short summaries because I know mera short summary strong hai, and I can easily do the elimination and come up with the answers. Within 5 minutes, we can do 2 or 3 short summary questions. Like here, I'll take you over to the short summary. Acha, yahan pe, by the way, note karke rakh lo, passage 3 mein question 10 and passage 4 mein there are 2 more questions that I can come back to. So I still have 3 more questions which are very, very doable and मुझे पुकार के कह रहे हैं आओ आओ मुझे solve करो. ठीक है, so उस पे हम वापस आएंगे. अभी we need to go over to the short summary questions. I'll take you over there and show you what I mean by easy question. Okay, here I have these with me. Question 20, yes. So question 20, if you see over here, this was something on 1975 was the year BBC began regular live TV coverage of the Booker Prize. Okay, and then you've got data in that. Now, in this particular paragraph, you have to just do the mapping. Just for those of you who are doing this session with me for the first time or who are kind of getting an experience of my classes for the first time, I'm just going to show you quickly what I mean by mapping. Yes, Jayesh? 15 to 16 attempts, that means you're getting many wrong. So reduce your number of negatives, Jayesh. Okay, here, I'll just show you once quickly how to map a paragraph in short summary. 75 was the year BBC began regular coverage of the Booker Prize, fundamental to its fame, okay, era terrestrial television. Pick the keywords, BBC TV, fundamental, okay, great era, positive tone, okay, carefully encourage scandals, regularly detonated, okay. Then you go down further, year before Anthony Burgess. So you can see that there's a lot of data in it. Then the 4th line says the Prize's administrator Martin Goff leaked the story. So something about a scandal, something about a story getting leaked, and then go down to the last bit. It was by such steps that the Booker became not just a book prize, but a heady tangle of arguments, controversy and speculation. Then there's a colon there, which is very important, a cultural institution. I got my keywords. BBC, Booker, scandal, leak, and then not a book prize. So in the last 2 lines, I apply the technique, not this, but that. So not just a book prize, but a heady tangle of arguments, controversy, speculation, cultural institution. These are my keywords. I would take these words and I would go back and go down to the options and eliminate. So let's just check the options. यहाँ पे बहुत ही easy elimination था इसमें. The Booker would not have the status of a hub of controversy if it weren't for this scandal chasing administration. Nahi. The cultural part is missing. Why? Because it was after the colon. So 1 is eliminated. Option 2, the history of Booker Prize when its live coverage began, controversies and gossip. Yes, but where is the not this but that technique, which was very important, and that was there at the end, right? So option 2 also gets eliminated. Option 3, orchestrated production and coverage. Okay, fine. 3 and 4 bacha hai, lekin 4 has those words. The Booker Prize is more than just a literary award. Bola hai na last 2 lines mein, not just this but this. Its carefully orchestrated fame has made it a culture. So answer D. This is what I mean when I say that short summaries are very easily doable. You should just know how to eliminate. And elimination में सबसे important part होता है कि paragraph में ना you should be able to identify that this portion is the most important point or it's a critical point and it should be there in your notes. Okay.
Yes, Vanshika. Okay. Vanshika, for CR, critical reasoning, you really need to do some basics. So unless you come over to my class, how can I help you with that? For the time being, I would say just do some PYQs. PYQs में आपके जो भी critical reasoning के questions है ना, उनको 2 बार 3 बार आप revise कर लो. You may get benefited by that. Okay, so ye short summaries. Now, Jayesh, I would do all the 3 short summaries. And in case I find any one very difficult, I would not do that one. I would do two then. Okay? So, 2 short summaries pick kar liye, and then we can go over to PJs and odd one out. Please remember one बहुत बड़ा सा piece of ज्ञान over here. PJ and odd one out में होता क्या है? Students think that it is theta, negative तो नहीं है, so चलो करते हैं इसको. करने में they forget that they are taking a lot of time over. 10 मिनट निकल जाते हैं पीजे और odd one out में, which is absolutely done. You have to be fast with PJ and odd one out. देखो PJ में there is no guarantee of the question. I mean of the answer. कहने का मतलब RC में the answers are given there. That is one very good thing about RC. No external knowledge applied. अभी PJ में क्या होता है? Even if you mark 3214, 2314, but there are different authors and different authors follow different styles of writing. So how do you know कि ये कहाँ से pick किया गया है? उस author का क्या style है? Whether you're going to be following that style or not, कुछ पता नहीं है हमें. Right? So PJ और odd one out में इसलिए मैं कहती हूँ don't waste too much time. Yes, give all the 5 questions a look. देखो वहां पे अगर आसान है तो प्लीज 7 मिनट में 6 से 7 मिनट में फटाफट पीजे और ऑड वन आउट में से जो करना है. लेट्स से यू गिव टाइम टू 3 क्वेश्चंस, 2 पीजेस एंड 1 ऑड वन आउट. बाकी के जो क्वेश्चंस बचे उसमें 1 मोर पीजे एंड 1 मोर ऑड वन आउट. उसमें जस्ट राइट द आंसर जो भी आपको समझ में आया. डू नॉट लीव दोस क्वेश्चंस बिकॉज दे आर टीटा. उनका नेगेटिव मार्क नहीं है. Got it? So after completing short summaries, I would go back to, I would go to PJs and all, usko karke, and then I would go back to my RC. RC mein I showed you, RC mein 3 questions were there which were like very tempting, and I need to go back to those and solve those. तो मेरे पास क्या हुआ अभी यहाँ पे टाइम का ब्रेकअप देखो आप जयेश. 15 minutes में hustle, I completed 8 questions. 15 minutes flat. ठीक है, चलो 15 से 16 हो गया. देन आई गो ओवर टू शॉर्ट समरी. शॉर्ट समरीज अगर 3 भी मैं करती हूँ 2 minutes पर क्वेश्चन, 6 to 7 minutes आई डू माई शॉर्ट समरी. एंड देन क्विकली जितनी जल्दी हो सके पैराजंबल्स एंड ऑड वन आउट करके ये सब फिनिश करके स्टिल आई शुड बी लेफ्ट विथ 10 minutes. Now, in those 10 minutes, I need to go back to my RC and go back to those questions which were tempting and which I have noted down on my sheet. In this case, it was question 10 from passage 3 and passage 4 mein se 2 questions. Passage 4 was like totally good. ठीक है? So ये करके I'll end up with like 8 plus 2 short summaries 10 plus 3 from PJs 13, and then I come back and do 3 more questions 16. 16 3s are 48. चलो मेरे 3 wrong हो जाते हैं. 45. I think that's a great score. But that will happen only when you divide your time wisely. So you have to understand the passages ka questions. You have to pick on the basis of questions. You have to first decide you want to follow 2-2-2-2 या 3-3-3 wala technique. So now in case I was doing 3-3 wala technique, 3-3-3, only 3 passages. Why? Because I get exhausted seeing the 4th passage. So I would not attempt passage 3. It's not because the passage is difficult. It's because iske questions jo hai, passage 3? No. Closest to that. Okay. Sorry, passage 2. Passage 1 had like very easy questions. Passage 3, raindrop instance, inevitable certainty, okay, analogy, ये वाला भी काफी वो सही है. And then passage 4 of course had good questions, all good questions. So passage 2, that was Dante and Divine Comedy wala, I would skip if I were doing 3 passages. Got it guys? So this is how you have to decide कौन सा करना है, कितने time में करना है. Pre-SS in what time Kashish? 3 to the 6, 7 minutes max.
And Kashish, please don't get too obsessed about the time. I mean, if you keep looking at the time every 1 minute or so, you will forever be in that panic mode. हो ही नहीं पाएंगे फिर आपसे questions. It all depends on how you tune, how you train your body and your mind to do those questions in that much of a duration. So Abhi, you still have some time. You've got like what, how many days? Aaj kya hai, fourth hai, right? Yes. So you still have like 20 solid days. Kashish, what I suggest is you should start doing time bound practice. Time bound practice mein there's one thing that always works. You set a timer for 30 minutes. Okay? Take 4 passages. Do any 12 questions across those 4 passages. This is what works very well with my students. So I'm passing on this bit of gyan to you, Kashish. So what happens is for 20 days, if you do this exercise, after a period of time, your brain understands that it has to hustle. आराम से बैठ के वो ना सॉल्व नहीं करेगा, फिर बोलेगा अच्छा चलो जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है. It will always be on the move. Understood, guys? Kashish, Vanshika, Aditi. Cool? All right. So we are done with this analysis. And remember, it's all about time management and staying calm. So even if you have mastered all the techniques, Vanshika, you cannot expect to do well in the exam if you lose your calm that day. So the best thing is do some time-bound practice, familiarize yourself with the types of questions that are there, types of questions abhi jaise maine dikhaya. Train yourself how to select the questions and the passages, and all through just stay calm. Wow, Pranav, that's so heartening to hear. In this AIMT, I used your strategy 222 for RC, got one wrong, and all PJs were correct. Very good. So, how many did you get correct, like total? Nikhil, practice set. Don't do like practice set general overall ऐसा types. अभी आप ये करो निखिल जो मैंने आपको बताया, do your time bound practice sessions for 20 days straight. Do this practice, do this exercise, time bound wala. 30 minutes, 4 passages, 12 questions. Even if those 4 passages have 15 to 16 questions, doesn't matter. You have to cherry pick any 12. And pick those questions on the basis of what I guided you just now. Okay, that's good, Pranav, very good. So 5 RC questions, okay, and 2 PJ, 2 OOO. Why didn't you attempt short summary, Pranav Goyal? So I think you ended up with 25 or 26 marks. Kashish, group में इसकी जरूरत नहीं है. You have got your Unacademy app, right? उसपे notes uploaded हैं for subscribers. So you have to just go to your Unacademy app, learners app, go down, देखो वहां पे 4 बटन, वो buttons नहीं, 4 आपको वो आइकन्स बने हुए होंगे. उसमें go to self study पे क्लिक करेंगी, notes निकल के आएगा. notes VARC पिक करो. VARC में you've got RC passages of all sizes, shapes and colors. Okay, Pranav, I hope you are well now. So, Pranav, enroll for the AIMT that's coming up on 6th, and Pranav, apply the strategy that works for you very well. Please give me some good news. Chalo, guys, we'll call it a day now. I hope this session is going to be helpful for all those of you who are still struggling to understand. No. Okay. Yes, we are live. So finally we are live. How are you guys doing? कैसे हैं आप लोग? Hello all and welcome to the session. How are you guys doing? So this is Sagar Thakker. Welcome to the session and फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक भी कर दो, है ना, बिकॉज देयर आर टू मेनी पीपल वाचिंग द वीडियो एंड वी हैव टू मेनी लेस नंबर ऑफ लाइक्स. ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, राइट? यस, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना.
And for those who have not appeared for the All India Mock Test Series, कैट का मॉक लाइव है। 30th को लास्ट मॉक हुआ था, जिसका एनालिसिस हम लोग आज लेने वाले हैं, ठीक है। एंड November 6th and 13th and 20th, these are the last 3 mocks upcoming, जो आप लोग फटाफट से देंगे, राइट, है ना, जो आप लोग फटाफट से जाके देंगे, है ना। क्या हम लोग लाइव हैं? क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को प्रॉपरली? क्या हम लोग लाइव हैं? क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को प्रॉपरली? यस, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली। लेट्स हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे। So let's begin with the session. Just a second, huh? Just a second. Let me share the link so everyone can join the session, right? Yeah. Let me share the link so that everyone with the maximum possibilities can join the session. आप लोग भी please maximum to maximum link को share कर दीजिए. And in this video, we are going to completely analyze the mock that happened on 30th, and we are going to analyze the LRDI part, है ना. Let's come to the first question of the day. Now let's come to the first question of the day, and this was the first set of your All India mock test series that happened right on 30th. Okay, चलो so बात करते हैं आज पहले सेट की हम लोग, एंड लेट्स हैव अ लुक कि क्या कहना चाह रहा है सेशन. ओके, लेट्स हैव अ लुक कि क्या कहना चाह रहा है. चलो मैं लाइव होना, मेरी आवाज़ आ रही है ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली? चलिए देखते हैं, फाइनल चेक. यस, ओके. क्या बोला है? नेशनल शेयर एक्सचेंज एनएसई हैज अ सर्टेन गाइडलाइंस फॉर प्राइसिंग ऑफ स्टॉक्स अराउंड द डेट ऑफ द बोनस इशू, है ना. आवाज आ रही है मेरी प्रॉपरली? ओके. A bonus issue is when a company listed on NSE issues a share in a certain ratio to the current stakeholders. For example, a company issues a share for every 2 shares held, right? The bonus is to share का ratio. तो see, तो bonus is to share का ratio क्या हो जाएगा? 1:2 if company issues in this share. तो मतलब अगर मान लो कि सागर है, अब सागर के पास किसी एक्स कंपनी के 2 शेयर हैं, देन सागर इज गोइंग टू गेट बोनस. कितना बोनस मिलेगा सागर को? 1 शेयर का. अगर सागर के पास 4 शेयर हैं, सागर इज गोइंग टू गेट अ बोनस ऑफ 2 शेयर्स. आर वी क्लियर विद दिस? यस और नो? इफ कंपनी शेयरिंग इन 1:2 का रेशियो, द रेशियो कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपनीज, राइट? द रेशियो कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपनीज. ओके. If Amit holds 2 shares of ABC Limited, which announces bonus shares in the ratio 1:2 and pre-bonus date of 20th August, है ना, ठीक है. Hence the post-bonus date is 21st of August. तो see, pre-bonus date कौन सा हुआ? 20th. post-bonus date कौन सा हुआ? 21st. अब अमित के पास किसी कंपनी के 2 शेयर्स हैं, है ना, जैसे कि अभी मैंने बात करी सागर की, है ना, जैसे कि अभी मैंने बात करी सागर की, तो वैसे ही हम लोग वी आर टॉकिंग सेम अबाउट दी अमित, राइट, है ना. अमित हैज अ 2 शेयर्स ऑफ कंपनी एंड दैट कंपनी डिसाइड्स टू गिव बोनस इन रेशियो 1:2. तो दैट मीन्स कि अमित को 1 शेयर मिलेगा बोनस में. तो नाउ द शेयर्स ऑफ अमित इज 3. The price on the 20th August will remain the same whole day. ओके, अगर x रुपीज है तो पूरा दिन x रुपीज रहेगा, है ना. एट दी प्री बोनस प्राइस, पीबीपी क्या होता है? प्री बोनस प्राइस. ऑल बाइंग्स एंड शेयर सेलिंग विल बी डन ऑन द सेम प्राइस. इफ इट इज 300 ऑन 30th of August, 20th of August, लेट अस से एक शेयर का प्राइस कितना है? 300, है ना. तो अमित इन्वेस्टेड 3 into 200, है ना, 3 into 300 into 2, टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया? 600. टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया? 600. The price on 21st will also remain the same on the whole day after pre-bonus. तो जहां पे जो प्राइस है वही प्राइस सेम टू सेम प्राइस रहेगा. अमित इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन 2 days will be same. On 21st August he will be having 3 shares. अब सी, तो
अब ये 3 शेयर्स हैं, उसका इन्वेस्टमेंट कितना है 600 रुपीज, उसका इन्वेस्टमेंट कितना है 600 रुपीज। दैट मीन्स कि नाउ ही इन्वेस्टेड 200 रुपीज, है ना। प्री बोनस प्राइस कितना था पर शेयर 300 रुपीज, है ना। नाउ आफ्टर बोनस प्राइस, है ना, आफ्टर बोनस प्राइस कितना हो गया, ए बी पी इज 200, है ना, बिकॉज कि हमने 300 के 2 शेयर्स बाय करे थे, है ना, तो वो हो गया 600। बट अब वो शेयर्स कितने हो गए, चलिए चेक करो। अब वो शेयर्स 600 के मेरे पास 3 शेयर्स हो गए, तो मतलब कि एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 200 रुपये, है ना। यस, आई प्रॉमिस टू अटेंड द रेगुलर क्लासेस फ्रॉम ट्यूसडे, हैव अ ग्रेट डे। ओके हर्ष, हैव अ क्लियर विद दिस, क्लैरिटी माइंड में बताइए। चलो आगे देखते हैं। It is observed that from 8 companies, 20th August was the pre-bonus date and 21st August was the post-bonus date. Following table has been given with the price on the stocks at 22 9 am, ठीक है। चलो, तो हमको एक टेबल गिवन है, तो ये कंपनी है राइट, टोटल 8 कंपनीज, उनका बोनस इस टू शेयर का रेशियो गिवन है, प्री बोनस प्राइस हमको गिवन है ना, एंड प्राइस ऑन 20th ऑफ अगस्त। अब प्री बोनस प्राइस जो होगी 20th को, वही आफ्टर बोनस प्राइस होगी, बोलो ये सुनो, वही की वही आफ्टर बोनस प्राइस होगी। आर वी क्लियर विद दिस, टेल मी ये सुनो, आर वी क्लियर विद दिस, क्लैरिटी है माइंड में, यस क्लैरिटी है माइंड में, चलिए, है ना, एडमिट कार्ड मिल गया ना, वेरी गुड। चलो ओके, तो देखते हैं आगे, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है सेशन में और क्वेश्चंस में। लेट अस सी व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, राइट, है ना, लेट अस सी व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। अब सी, मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि लेट अस से कि जो मैंने शेयर्स अलॉट किए हैं, है ना, जो मैंने शेयर्स अलॉट किए हैं, कि लेट अस से बोनस इस टू शेयर्स का रेशियो जो है वो m इज टू n है या x इज टू y, है ना। या चलो कि लेट मैंने मान लिया कि x इज टू वाई, बिकॉज हम लोग हर बार x इज टू वाई लेते हैं, कि भाई अगर x बोनस मिला है तो y उसका ऑलरेडी उसके पास होगा, है ना, y उसका ऑलरेडी उसके पास होगा। तो उसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एबीपी ऑफ दीज कंपनीज, है ना, तो द फॉलोइंग आफ्टर बुकिंग, सॉरी आफ्टर बोनस प्राइस, राइट, ये प्री प्री बोनस प्राइस है, आफ्टर बोनस प्राइस कितना होगा ये हमको पता करना है। ठीक, तो मुझे एक बार बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि प्री बोनस प्राइस के पास, प्राइस के उसके पास वाई नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, है ना, प्री बोनस प्राइस के, जैसे कि उसने 300 के 2 शेयर्स लिए थे, नहीं लिए थे, बताओ 300 के 2 शेयर्स, आर क्लियर विद दिस, टेल मी यस और नो। नाउ इसी का जो टोटल अमाउंट होगा, इसी का जो टोटल अमाउंट होगा वो आफ्टर बोनस प्राइस इंटू एक्स प्लस वाई होगा, वही हुआ ना सी। ये जो 600 है वो 600 कहाँ से आया, आफ्टर बोनस प्राइस जो 200 था, बोनस उसको मिला एक शेयर का और था उसके पास 2 शेयर्स, हुआ कि नहीं हुआ बताओ। इसी तरीके से ये सही है कि नहीं बताओ। तो अगर मुझे आफ्टर बोनस प्राइस निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्री बोनस प्राइस इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, टेल मी यस और नो, है ना, x plus y total ratio, right, x plus y is nothing but total ratio। अब एक क्लियर विद दिस, टेल मी। तो अगर मैं सबका सबका प्री बोनस प्राइस निकालूं, है ना, सबका प्री बोनस प्राइस निकालना चाहूं तो प्री बोनस प्राइस कितना आ जाएगा, चलिए चेक करते हैं। इधर ही कॉलम बना लेता हूं फिर मैं एक, राइट, इधर ही मैं कॉलम बना लेता हूं। अब क्लियर विद दिस, तो सी वीपीआर का अगर मैं निकालना चाहूँ तो वीपीआर का कितना आ जाएगा, प्री बोनस प्राइस इज 135, नंबर ऑफ शेयर, सी दिस इज एक्स इज टू वाई का रेशियो, राइट, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए 2/3, तो कितना आ जाएगा 60, है ना, किससे कटेगा ये 45 3 सा 90, है ना, प्री बोनस प्राइस कितना आ गया 90। अब अगले विद दिस, अगर मैं बाटा का निकालना चाहूँ तो बाटा का कितना है 175, वाई का वैल्यू इज 5 और एक्स प्लस वाई इज 7, है ना, एक्स प्लस वाई इज 7, कितना बटेगा बताओ, 25 से कटेगा, 25 5 सा कितना हो जाएगा 125। So this is how we can calculate the ABP after bonus price of each and every share, है ना, we can calculate the after bonus price of each and every share, tell me yes or no, we can do it like this, है ना। तो आफ्टर बोनस प्राइस निकालो जरा सबका, है ना, पोस्ट बोनस प्राइस आपके पास गिवन है, वाई का वैल्यू आपके पास गिवन है एंड डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई भी हमको पता है। जल्दी से
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, पैसे नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? तो देखो मैं सबकी वैल्यूज लिखते जा रहा हूँ, राइट? आई विल राइट ईच एंड एवरी वैल्यू फटाफट से कैलकुलेट करके। 165/5, तो दैट इज 165/5 इज 35 इंटू 2, दैट इज, है ना, ITC 165/3 + 2 5, अच्छा 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बी 33 एंड दिस इज 66, है ना? 240/3 is 80 and 80 into 1 is 80. Now 160/4 is 40 and 43 is a 120. मिलेगा नहीं मिलेगा? 200/2 is 100 and this is 100. 500/5 is 100 and this is 300, है ना? 700/5, 750/5 is 15, 15 and 1, that is 150. So this is the after bonus price, है ना? ये प्राइस होगा, सी ये वाला प्राइस कब होगा? दिस इज द प्राइस ऑफ 20th of August, दिस इज द प्राइस ऑफ 21st of August, राइट? आफ्टर बोनस प्राइस। ये अब आगे जाके मुझे हर क्वेश्चन में काम आएगा, राइट? ये आगे जाके मुझे पूरे सेट के लिए काम आएगा। सी दिस इज द इजीएस्ट सेट ऑफ योर मॉक सीरीज, राइट ना? दिस इज द इजीएस्ट सेट ऑफ 30th मॉक दैट हैपेंड, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, राइट, है ना? ये इजीएस्ट सेट है। चलिए क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ABP ऑफ द कंपनीज, है ना? तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ABP ऑफ द कंपनीज कौन सा है? देखो, है ना, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ABP ऑफ द ऑर्डर्स कौन कौन सा है? अगर मैं कंपैरिजन करूं तो टाटा टाटा का कितना है? 150। इमामी का कितना है? 120, है ना? बजाज का कितना है? 100 एंड VPR का कितना है? 90। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। इज दिस द करेक्ट ऑर्डर गाइस? यस और नो? क्या ये करेक्ट ऑर्डर है? पूरा का पूरा बताइए मुझे। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? क्लैरिटी है माइंड में? यस। चलो आगे देखते हैं, है ना? वन मोर। अर्जुन बॉट 60 शेयर्स ऑफ ईच ऑफ दीज 8 कंपनीज ऑन 20th of August। तो अर्जुन के पास हर कंपनी के 80 शेयर्स हैं। इफ ही डजंट सेल एनी शेयर्स ऑन द सेम डे और द नेक्स्ट डे, है ना, सेम डे और नेक्स्ट डे पे नहीं करता, then what will be the number of shares of these 8 companies held by him on 21st of August? तो कितने शेयर्स वो होल्ड कर रहा होगा? तो 80 उसने लिए हर कंपनी के, अब कुछ ना कुछ उसको बोनस भी मिला होगा, है ना? 80 ही बॉट ऑफ ईच एंड एवरी कंपनी, नाउ ही माइट हैव गॉट द बोनस ऑफ फ्यू थिंग्स, राइट, है ना? हर कंपनी का कुछ ना कुछ उसको बोनस मिला होगा, राइट, है ना? तो सी अगर मैं बात करूं तो इसके 80 लिए होंगे, तो 80 लिया मतलब कि 40 का बोनस मिला होगा, 1:2 का रेशियो, है ना? 80 लिया मतलब कि 40 का बोनस मिला होगा। टेल मी यस और नो? आर वी क्लियर विद दिस? है ना, जितने भी शेयर्स इश्यू हुए थे, आर वी क्लियर विद दिस? अच्छा 60 शेयर्स है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने 80 पढ़ लिया था उसको, राइट, सॉरी। 60 शेयर्स, तो 60 मतलब कि 30 का बोनस हुआ होगा, मतलब कि हो जाएगा 90, है ना? फिर 5/7, राइट, 2/7 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा? नहीं 7, राइट, उल्टा कर दिया मैंने, है ना? 7/5, ठीक है, नहीं 7/5 इंटू 60, है ना? तो 7/5 12 एंड 12 7 जा 84, ये कितना हो जाएगा? 60 एंड 2 5/2, है ना? 30 इंटू 5, तो 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 150 शेयर्स। दिस विल बी 180 शेयर्स, है ना? 3 तो 4 मतलब कि 6 जो 24 और बाय 3 तो 80, है ना? ये समझ आया कि नहीं? बताओ कैसे करेंगे, बताओ। अगेन अगर मैं इसको x/y का रेशियो बोलूँ तो x/y कितना हो जाएगा? सी इट इज x प्लस वाई अपॉन वाई इंटू 60, राइट? x प्लस वाई अपॉन वाई इंटू 60, राइट? बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना? तो 60/2 और ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा पूरा पूरा, राइट, है ना? एंड ये कितना हो जाएगा? 100 और ये कितना हो जाएगा? 300। आवे क्लियर विद दिस? आवे क्लियर विद दिस? टोटल मारो कितना आ रहा है? टोटल मारो कितना आ रहा है? 90 84 150 180 120 100 एंड 300। चेक करो कितना आ रहा है? 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7, 7 और एक 8, 850 850 एंड 90 इज 940
84 दैट इज 1104 बन रहा नहीं बन रहा बताओ। टोटल उसके पास 1104 शेयर्स होंगे, है ना, ऑन 21 ऑफ अगस्त, अगर वो सेल नहीं करता है तो, है ना, ऑन 21 ऑफ अगस्त अगर वो सेल नहीं करता है तो की बात है। अब क्लियर विद दिस। तो क्या इन दोनों के क्वेश्चंस आप होमवर्क में करके बताओगे, है ना, क्या इन दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में करके बताओगे, मुझे कमेंट करके बताओगे, है ना। एंड वी हैव टोल्ड यू दैट ऑलवेज ऑलवेज कमेंट, राइट, है ना, वी हैव टोल्ड यू दैट कमेंट ऑलवेज ऑलवेज ईच एंड। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, ठीक है, ओके। चलिए लेट्स बिगिन विद हिम। ओके, नेक्स्ट सेट पे देखेंगे, चलो नेक्स्ट सेट पे देखेंगे सी। तो इसके दो क्वेश्चंस और हैं, है ना, इसके दो क्वेश्चंस और हैं। अब इसके लिए, ये दो क्वेश्चंस के लिए आपको एडिशनल डेटा, है ना, दिया हुआ है, राइट, है ना, ठीक है, देखते हैं। ठीक, तो इसको, ये दो क्वेश्चंस के लिए हमको एडिशनल कुछ डेटा गिवन है। राहुल परचेज 300 शेयर्स ऑफ ईच ऑफ दीज कंपनीज ऑन 20th अगस्त एंड सोल्ड ऑल दी शेयर्स ऑन 22nd अगस्त एट 9 PM। तो 300 शेयर्स ऑफ ईच कंपनी अगर उसने लिया है ना, यस, आई विल क्लियर विद दिस, ठीक है। चलो देखो, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि 300 शेयर्स अगर यहाँ परचेस करें हर कंपनी के, तो दैट मीन्स कि बोनस के बाद उसके शेयर्स इंक्रीज हो गए होंगे, है ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो बोनस के बाद अगर उसके शेयर्स इंक्रीज हो गए हैं एंड देन ही सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ दिस मच, राइट, है ना, एंड देन ही सोल्ड अ प्राइस ऑफ दिस मच। अब सी, मैं 300 शेयर्स लेके बात करूँ कि मैं 60 शेयर्स लेके बात करूँ, मैं आंसर तो सेम आएगा ना, है कि नहीं। मैं 300 शेयर्स लेके बात करूँ कि मैं 60 शेयर्स के कंपैरिजन में काउंटिंग करूँ, तो मेरा आंसर तो सेम आएगा कि नहीं आएगा बताओ, बिल्कुल सेम आएगा, राइट। तो सीधा सीधा क्या मैं डायरेक्टली मैक्सिमम प्रॉफिट देख लूँ, सीधा सीधा मैं क्या डायरेक्टली मैक्सिमम प्रॉफिट देख लूँ नहीं देख लूँ बताओ, है ना, जिसकी प्राइस सबसे कम रिड्यूस हुई है उसका सबसे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा होगा, है ना। तो सी, मारिको का अगर मैं देखूँ तो मारिको का दिस इज हाईएस्ट डिक्रीज, राइट, है ना। आईटीसी जिसका शेयर प्राइस कम डिक्रीज हुआ होगा उसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हुआ होगा, राइट, है ना। जिसका शेयर प्राइस जिससे जिससे कम डिक्रीज हुआ होगा उसका प्रॉफिट उतना ही मुझे ज़्यादा मिला होगा। सी 500 का 336 हो गया, दैट मीन्स कि 165 का डिक्रीज, 164 का, 200 से लेके 11, बट सी 200 से लेके 11 हो गया है। तो अगर मैं 200 से 111 चेक करता हूँ दैट मीन्स दैट इज अ डिक्रीज ऑफ 79, राइट, है ना, दैट मीन्स दैट इज अ डिक्रीज ऑफ 89। तो अगर मैं 500 से डिक्रीज चेक करूंगा इसका कंपैरिजन करके, तो ये कितना हो जाएगा, डबल, 2.5 टाइम्स, राइट। तो 2.5 टाइम्स इज मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 190 के आसपास, नहीं तो सबसे कम डिक्रीज कहाँ है यहाँ पे, सबसे कम डिक्रीज कहाँ है यहाँ पे। तो वी कैन से दैट कि बिरला हैज दी हाईएस्ट परसेंटेज प्रॉफिट, राइट, बिरला हैज दी हाईएस्ट परसेंटेज प्रॉफिट। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, टेल मी यस और नो, क्लैरिटी है माइंड में। चलिए एक और सेट करेंगे, ओके, लेट अस ट्राई वन मोर सेट, क्या बोलना चाह रहा है ये, सी। अब ये मोस्ट डिफिकल्ट सेट था, राइट, है ना, वन ऑफ द डिफिकल्ट सेट। तो इसको हम लोग साइड में रखेंगे। मैं पेपर पैटर्न कैसे अटेम्प्ट करता हूँ उसका बता रहा हूँ आपको, क्लैरिटी, है ना। अगर मैं होता तो सबसे पहला सेट वो अटेम्प्ट करता जो अभी हमने किया। नेक्स्ट सेट आई वुड अटेम्प्टेड दिस वन, राइट, है ना, नेक्स्ट सेट मैं ये अटेम्प्ट करता, बिकॉज मेरे को पता है कि दो सेट में अगर सही करके आता हूँ तो आई विल बी क्लोजर टू 95%, है ना। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। इन इंडिया there are five model cars which cost more than 1 CR, है ना। तो जिसकी कंपनी, जिसकी वैल्यूएशन 1 करोड़ से ऊपर है ना। सी, दिस इज अगेन अ फिक्शनल, दीज आर अगेन अ फिक्शनल कैरेक्टर्स, राइट, है ना। तो डोंट गेट गिजर की इतनी प्राइस कैसे हो सकती है कार की, अल्टो की इतनी कैसे होगी, नैनो की कितनी होगी, राइट। दीज आर अगेन फिक्शनल कैरेक्टर्स, ठीक है, यस। चलिए, तो दिस इज द प्राइस ऑफ दिस एंड दिस, सेंट्रो की इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, ओके, उसकी इतनी, फाइन, ओके, लेट अस सी। नो कार इज सोल्ड इन ऑल द 5 सिटीज। तो पांचों की पांचों सिटीज में सारी कार्स नहीं बिकी हैं, ठीक है। इफ नन ऑफ द सिटीज द नंबर ऑफ कार्स ऑफ एनी मॉडल एक्सीड्स 3,
वेरएस नैनो है ना, तो कोई भी कार लेस देन 3 होगी इन अ पर्टिकुलर सिटी, राइट, है ना। एंड नैनो जो है वो एटमोस्ट 1 होगी, है ना, सॉरी, पर्टिकुलर सिटी। ओके, सेल्स इन द नंबर वॉज हाइएस्ट और मैक्सिमम इन दिल्ली। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्स कहाँ पे मैक्सिमम है, दिल्ली में, सी। तो वी नीड सिटीज, वी नीड कार्स, नंबर ऑफ कार्स एंड टोटल सेल्स, राइट। तो नंबर ऑफ सेल्स का मैक्सिमम कहाँ पे है, दिल्ली में। while the sales in rupees was highest in Jaipur, है ना। तो sales in rupees was highest in Jaipur। अब clear with this, ठीक है, yes, clarity माइंड में। 9 सेंट्रो एंड 3 नैनो कार्स वेर सोल्ड इन टोटल। हमारे पास टोटल कितनी कार्स हैं, है ना। तो टोटल मुझे 9 सेंट्रोस बेचनी है, टोटल मुझे 9 सेंट्रोस बेचनी है एंड 3 नैनो बेचनी है, राइट। नैनो कितनी बिकी है मेरे पास, 3। क्लियरिटी है। 7 cars were sold in Jaipur and the sales of 37 crore was done in Delhi, है ना। 7 cars were sold in Jaipur and total sales of 37 crore was done in Delhi. Yes, are we clear with this? From these 5 models. Okay. Highest number of Centros were sold in Mumbai, है ना। Highest number of Centros were sold in Mumbai, है ना। तो सी, हमको पता है किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप की कार में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बेच सकता हूँ, है ना। तो मुंबई में सबसे ज़्यादा सेंट्रोस बिकी हैं, तो दैट कैन बी 3 नंबर ऑफ सेंट्रोस, है ना, दैट कैन बी 3 नंबर ऑफ सेंट्रोस। आर वी क्लियर विद दिस, है ना, आर वी क्लियर विद दिस, क्लैरिटी माइंड में। मोर देन इन एनी अदर सिटी, ओके। In Madras, total sales of 31 crore and 1 nano car was sold. In Madras, total sales of 31 crore and 1 nano car was sold. Are we clear with this? And 1 nano car was sold. Are we clear with this? If none of the cities less than 6 cars were sold and more than 8 cars were sold, है ना। तो किसी भी पर्टिकुलर सिटी के अंदर नंबर ऑफ कार्स कैन बी ईदर 6 और 7 और 8, ऐसा नो, इधर 6 और 7 और 8। अब सी, जयपुर में 7 कार्स हैं, दिल्ली में मैक्सिमम कार्स हैं, तो दैट मीन्स द नंबर ऑफ कार्स इन दिल्ली इज मोर देन 7 एंड मोर देन 7 एक ही पॉसिबिलिटी है, 8। तो बाकी किसी भी सिटी में कितनी कार्स आएंगी, 6 या 7, राइट। बाकी किसी भी सिटी में कितनी कार्स आएंगी, 6 या 7। आर वी क्लियर विद दिस, है ना, आर वी क्लियर विद दिस, क्लैरिटी माइंड में। दिस इज वाई आई पिक दिस सेट, बिकॉज दिस सेट इज इजिली डूएबल, राइट, है ना। दिस सेट इज इजिली डूएबल एज कंपेयर टू द प्रीवियस सेट्स, राइट, एज कंपेयर टू द प्रीवियस सेट्स, ओके। In each of the Pune and Mumbai, only 3 of the 5 model cars were sold, है ना। तो पुणे एंड मुंबई में ओनली 3 मॉडल्स बिके हैं, मतलब कि पुणे एंड मुंबई में कहीं पे भी 2 जगह पे जीरो आएगा, पुणे एंड मुंबई में कहीं पे भी 2 जगह पे जीरो आएगा, क्लियरिटी है। इन अदर सिटीज एटलीस्ट 4 मॉडल्स वेर सोल्ड, है ना। बाकी की अदर सिटीज में, बाकी की अदर सिटीज में एटलीस्ट 4 मॉडल्स वेर सोल्ड। अब एटलीस्ट 4 मतलब क्या, किसी भी सिटी में 5 गाड़ियां तो बिकी नहीं है, सी, नो कार इज सोल्ड इन ऑल द 5 सिटीज, है ना। नो कार इज सोल्ड इन ऑल द 5 सिटीज, मतलब कि कहीं हर कार में कहीं ना कहीं जीरो तो आएगा, है ना। हर कार के लिए कहीं ना कहीं जीरो तो आएगा ही आएगा। आई विल विद दिस, नो कार इज सोल्ड इन ऑल द 5 सिटीज, ओके। किसी भी सिटी में 4 से ज़्यादा बिकी है, ओके फाइन, दिस इज नॉट द इंटरप्रिटेशन, ओके। इन मुंबई 2 ओमनीज वेर सोल्ड, टोटल 5 ओमनीज वेर सोल्ड। तो टोटल 5 ओमनी बेची हैं, उसमें से 2 ओमनी हमने बेची है मुंबई के अंदर, उसकी वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी, 8 CR। इसकी वैल्यूएशन कितनी हो जाएंगी, 7 3 अगर मैं 3 सेंट्रो बेचता हूँ, 7 या 21 करोड़, राइट, यस और नो, ठीक है फाइन। अगर एक नैनो बेचता हूँ तो इट इज़ 11 करोड़। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, यहाँ तक क्लियरिटी है, ठीक है। टोटल कितनी हमने बेची, हमने 5, है ना, ओके। Except for Nano, each model is sold in at least 4 cities. 3 Alto were sold in Pune, है ना। तो 3 Alto were sold in Pune। पुणे में कितनी अल्टो बिकी हैं, अल्टो कितनी बिकी हैं पुणे में, 3, तो इसकी प्राइस हो जाएगी 6 करोड़, है ना। अब उसने क्या बोला है, एक्सेप्ट नैनो ईच मॉडल इज सोल्ड इन एटलीस्ट 4 सिटीज। तो ईच मॉडल is sold in at least 4 cities
नैनो को छोड़ के, बिकॉज नैनो तो मेरे पास है ही 3, नैनो तो मेरे पास है ही 3, तो ये 3 कैसे बिकेंगी, 1+1+1, राइट है ना, ये 3 कैसे बिकेंगी, 1+1+1, बिकॉज नैनो किसी भी सिटी में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, राइट, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती नैनो किसी भी सिटी में, तो नैनो कैन बी मैक्सिमम 1 इन एनी सिटी। सेल्स इन सीआर इन ईच सिटी इज मोर देन 30, है ना, तो सेल्स इन सिटी इन एनी सीआर इज मोर देन 30 करोड़, है ना, मोर देन 30 करोड़, ओके, यस। ओनली इन जयपुर कार्स ऑफ ऑल 5 मॉडल्स वर सोल्ड, है ना, तो जयपुर में हर जगह पे टिक आएगा, है ना, 5 तरह की गाड़ियां जयपुर में बिकी हैं, मतलब बाकी हर सिटी में कहीं ना कहीं जीरो आएगा। एंड सेल्स वॉज मोर देन 40 सी आर। अब सी, सेल्स वॉज मोर देन 40 सी आर, तो जयपुर का सेल्स मुझे करना है मोर देन 40 सी आर। चलिए, तो मुझे पता है कि जयपुर का सेल्स इज मोर देन 40 सी आर एंड आई नीड टू सेल 7 कार्स। तो 7 कार्स की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 7 कार्स की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्या 7 कार्स की पॉसिबिलिटी में 1+1+2+2+1 रखूंगा तो होगा सी, इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, राइट, 2 and 2 4 and 3 7, है ना, 2 and 2 4 and 3 7, ओके, चलो इसी ऑर्डर में रख के देखते हैं। इसी ऑर्डर में अगर मैं रख के देखूं तो क्या मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है मोर देन 40 सी आर का, तो ये हो जाएगा 2 सी आर, ये हो जाएगा 4 सी आर, ये हो जाएगा 10 सी आर, ये हो जाएगा 7 2 14 सी आर, और ये नैनो हो जाएगी 1 करोड़, बिकॉज नैनो तो एक ही बेच सकती है, राइट, नैनो तो एक ही बेच सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, एंड सेंट्रो 3 से ऊपर बिकेंगे नहीं, बिकॉज सेंट्रो का यहाँ पे मैक्सिमम है। तो देखो जरा 40 के ऊपर हो रहा है क्या, 14 and 11 25, 25 and 10 35, 35 and 4 39 एंड 39 into 41 बन रहा है ना, बन रहा है C 41 CR, बन रहा है 41 CR, बिल्कुल बन रहा है, राइट, बनाना मोर देन 40 एंड नंबर ऑफ कार्स इज 7, नंबर ऑफ कार्स इज 7, आर वी डन, आर वी डन, ऐसा बनेगा। चलिए अब आगे आते हैं, बाकी का आते हैं। अब सी, इधर मुझे 37 करोड़ करना है एंड नंबर ऑफ कार्स इज 8, है ना, तो नंबर ऑफ कार्स इज 8 एंड 37 करोड़ अगर मुझे करना है तो नंबर ऑफ कार्स इज 8, नैनो कैन बी ईदर 1 और ईदर 0, है ना, नैनो कैन बी ईदर 1, अगर मैं यहाँ पे इसको एक को दे देता हूँ 11 करोड़, तो मेरे पास कितने बच जाएंगे, रिमेनिंग इज 26 करोड़, तो 26 मुझे कहीं से लाने की पॉसिबिलिटी है, 26 मुझे कहीं से लाने की पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या, फिर मुझे 26 लाने की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, सी, any addition of these numbers cannot make 26, right, any addition of these numbers cannot make 26, तो ये 26 तो नहीं बनेगा, that means nano has to be 0, right, that means nano has to be 0, because 26 को किसी भी एंगल से नहीं बन रहा है, तो nano has to be 0। अब अगर मुझे 8 करना है तो 8 कैसे आएगा बताओ, 8 का एडिशन में कैसे ला सकता हूँ, 8 का एडिशन में कैसे ला सकता हूँ, 8 की पॉसिबिलिटी मुझे क्या दिख रही है, क्या मैं 2+2 तो 2 कर दूंगा, बट हर सिटी में नंबर ऑफ कार्स कैन नॉट बी सेम, तो दो दो तो आ नहीं सकते हैं, क्या मैं इसको 3 and 3 6, नहीं, तो फिर तो एक और 0 रखना पड़ेगा, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जीरो में एक ही दे सकता हूँ, मैक्सिमम जीरो में एक ही दे सकता हूँ, बिकॉज हर सिटी में 4 मॉडल ऑफ कार्स तो बिकी बिकी हैं, तो अब और 0 वी कैन नॉट अफोर्ड, we cannot afford more zeros, so it is 3+2+1, is it possible, 3 and 2 5 and 2 7 1 8, है ना, तो अब इसकी हमको पॉसिबिलिटी दिखनी है ना, अब इसकी पॉसिबिलिटी हमको देखनी है, ओके, कि ये सेटिंग 2+3+2+1 की कैसे बैठ सकती है, देखो तो कहाँ बैठाऊंगा कि 8 तो फिट हो गया, अब 37 करोड़ का रेवेन्यू कहाँ से आएगा, 37 करोड़ का रेवेन्यू कहाँ से आएगा, चलो अगर इसी ऑर्डर में बैठा हूँ कि 2 3 2 1, तो क्या बैठ रहा है 2 3 2 1 से, 2 3 2 1 से अगर बैठाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 3 12 एंड 5 2 10 एंड 1 7, तो 10 और 12 22, 22 और 4 और 9, नो 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 नो, नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रहा, राइट, सो वी नीड टू शफल द ऑर्डर, राइट, वी नीड टू शफल द ऑर्डर, कुछ ना कुछ तो हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट, तो चलो अगर मैं इसको 3 एंड इसको
1 दे के देखूँ तो, है ना, इसको 1 एंड इसको 3 दे के देखें तो क्या ये पहुंच रहा है 37 तक, चेक करो। देन इट इज 4 एंड 5 टू ज़ा 10 एंड 7 या 21, 21 एंड 10 31, 31 एंड नहीं अभी भी नहीं पहुंच रहा, राइट, अभी भी नहीं पहुंच रहा। चलो, तो इससे भी नहीं हो रहा। क्या इस 3 एंड 2 को इंटरचेंज करके देखें? वी डोंट नो कि कौन सा पॉसिबल कॉम्बिनेशन बिठाना, राइट। वी नीड टू चेक द पॉसिबिलिटीज, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, राइट। वी नीड टू चेक द पॉसिबिलिटीज, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, राइट, है ना। तो ये हो गया 4, 5 3 ज़ा 15 एंड 7 2 ज़ा 14, 14 एंड 19 29, 29 एंड 8 37 बैठ गया, है ना। 29 एंड 8 37 बैठ गया, नहीं बैठ गया, बताओ। बैठ गया ना सॉल्यूशन, देखो। तो ऐसे ही बैठेगा, राइट। हिट एंड ट्रायल इज द ओनली सॉल्यूशन दैट वी कैन डू फॉर दिस। हिट एंड ट्रायल इज द ओनली, नहीं डियर, कोई रिजर्वेशन नहीं है, हाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है किसी भी तरह का वहाँ पे, ठीक है। यस, नो गट्स नो ग्लोरी, नील नो लेजेंड नो स्टोरी, अच्छा ये बात भी सही है, वाह। शुभम जायसवाल, नाइस डायलॉग, बट आई एम में डायलॉग्स नहीं आते, सॉरी, है ना। बट आई एम्स में डायलॉग नहीं आते हैं, सॉरी शुभम, कुछ नहीं कर सकते हम तुम्हारे डायलॉग का, ठीक है। चलो, तो इतना सेटिंग तो बैठ गया। तो मतलब दिल्ली इज डन, जयपुर इज डन, राइट, है ना। दिल्ली इज डन, जयपुर इज डन। चलो देखो, तो सेंट्रो हमारे पास 3 into 5 into 7 सेंट्रोस आर गॉन, दैट मीन्स वी आर रिमेनिंग विद ओनली 2 सेंट्रोस, है ना। 2 and 2 4 and 1 5 omni, मतलब 2 and 1 3 and 1 4 omni is gone, so we are remaining with 1 omni only. Nano, we are remaining with 1 nano only, yes or no? नैनो वी आर रिमेनिंग विद 1 नैनो ओनली। अब आप मद्रास पे आए, मद्रास का टोटल हमको कितना बैठाना है 31, है ना। मद्रास का टोटल कितना बैठाना हमको 31। चलो लेट अस मेक सेट मद्रास एनी हाउ, लेट अस मेक सेट मद्रास। मद्रास में 1 नैनो है, दैट इज कंफर्म। तो बाकी 4 का टोटल इज, बाकी 4 का टोटल फॉर मद्रास इज 20, राइट, है ना। तो बाकी 4 का टोटल फॉर मद्रास इज 20 करोड़। कैसे बैठेगा 20? कहीं एक तो मुझे देना पड़ेगा 0, कहीं एक तो मुझे देना पड़ेगा 0। तो अगर मुझे कहीं पे 0 देना है, एंड द नंबर ऑफ कार्स कैन बी ईदर 6 और कार्स कैन बी नंबर ऑफ 7, है ना। तो या तो 5 या 6 ही कार्स बची हैं। अगर ये 1 नैनो का निकाल दूँ तो 5 या 6 कार्स ही बचेंगे मेरे पास, राइट, है ना। एक कार 1 नैनो का निकाल दूँ तो नंबर ऑफ कार्स कैन बी ईदर 5 और 6। चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ कार्स कैन बी 5 और 6। तो लेट अस हैव अ लुक, लेट अस हैव अ लुक कि क्या कहना चाह रहा है। ओके, नंबर ऑफ कार्स कैन बी 5 और 6। तो अगर मैं बैठाऊँ 5 और 6 में कैसे बैठेंगे, 5 और 6 में अगर मैं बैठाऊँ, 20 करोड़ मुझे करना है, 20 करोड़ करना है। 20 इसका मल्टीपल नहीं है, 7 का मल्टीपल नहीं है, मुझे बाकी का सम 20 करना है। अगर मैंने एक सेंट्रो दे दिया तो ये हो जाएगा 7 करोड़, तो बाकी सबके लिए बच जाएगा 13 करोड़, विच इज़ नॉट पॉसिबल। 5 4 एंड 2 का सम किसी भी मल्टीपल में 13 करोड़ नहीं बैठेगा, राइट, है ना। 5 4 एंड 2 का किसी भी मतलब 13 नहीं बैठेगा। तो दैट गिव्स मी एन हिंट कि सेंट्रो कितनी आएंगी, 0। दैट गिव्स मी एन हिंट कि सेंट्रो कितनी आएंगी। तो दैट गिव्स मी एन हिंट कि बाकी की दोनों बची हुई सेंट्रो कहाँ जाएंगी, बाकी की दोनों बची हुई सेंट्रो कहाँ जाएंगी, पुणे के पास। अब एक लिए दिस, ओके ओके। तो 3 का सम 20 CR, 3 का सम 20 CR। तो तीनों का सम 20 CR मुझे कहाँ से दिख रहा है कि अगर मैं 10 करोड़ यहाँ से जोड़ूँ, 10 और 4 मैं यहाँ से जोड़ूँ तो मैं 6 करोड़ यहाँ से जोड़ सकता हूँ, बन गया 20, है ना, बन गया। सी 10 + 4 + 6 बन गया। अब नंबर ऑफ कार्स पे आते हैं। तो 10 करोड़ से 2 कार्स, 4 करोड़ से 1 कार एंड 6 करोड़ से 3 कार। 3 and 2 5 and 1 6 and 1 7 cars possible, possible। अब एक लिए दिस टेल मी यस और नो। अब एक लिए दिस, तो एक ओमनी बची हुई थी, वो एक ओमनी हमने खर्च कर दी,
that means the number of omni cars is 0 here. That means the number of omni cars is 0 here, and no car is sold in all the 5 cities. So that means ki the Alto in Mumbai is 0 again. Alto in Mumbai is 0 again. मतलब हर कार में एक बार कहीं ना कहीं 0 तो आएगा, हर कार में एक बार कहीं ना कहीं 0 तो आएगा. दैट इज कंफर्म. दैट इज कंफर्म्ड. ओके 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 ओके. चलिए अब देखते हैं. सी, अब जयपुर का टोटल जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, दैट मीन्स द टोटल ऑफ दिस इज लेस देन 41 करोड़, राइट. लेस देन 41 करोड़. 41 में से 21 एंड 8 उसके पास ऑलरेडी, दिस इज फिक्स्ड. तो 21 गया मतलब कि 20 में से 8 गया मतलब कि 12 करोड़. तो मतलब बाकी सब को मिला के हमको सिर्फ 12 करोड़ दे पाएंगे इसको. बाकी सब को मिला के हमको सिर्फ 12 करोड़ दे पाएंगे इसको, राइट है ना. वी कैन डिस्ट्रीब्यूट ओनली 12 मोर करोड़ फॉर दिस, है ना. 12 मोर करोड़ फॉर दिस. 3 and 2, 5 गाड़ियाँ उसके पास ऑलरेडी हैं, 5 गाड़ियाँ उसके पास ऑलरेडी हैं, राइट. So we can either give 1 more car or we can give 2 more cars. That is the only possibility. 0 ऑलरेडी आ चुका है, 0 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है. Yes or no? ठीक है. Yes or no? मुंबई में 0 ऑलरेडी आ चुका है. ठीक है. दूसरा 0 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. दूसरा 0 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. चलो लेट अस सी. अच्छा सी, सीधी सीधी बात है, इसका 6 करोड़ है, राइट. इसका 7 2 14 करोड़ और हमारे पास है. तो 14 and 6 ओनली इज 20, है ना. 14 and 6 ओनली इज 20. अब अगले वो दिस, चलो देखते हैं. ओके 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 ओके. ठीक है. तो चलो, तो मैं 5+1 एक कार देने की कोशिश करता हूँ या 2 कार्स देने की कोशिश करता हूँ. लेट अस सी कि मैंने अगर इसको एक गड्डी दिया, है ना. लेट अस सी कि मैंने इसको एक गड्डी दिया, तो एक मैंने यहाँ पे दिया और 0 मैंने यहाँ पे दिया. तो अगर एक दिया तो टोटल कितना हो जाएगा, 5. टोटल कितना हो जाएगा, 5. अब टोटल काउंट करो. 21 and 5 is 29, 21 and 5 26, 26 and 8 is 34. Still it is exceeding 30 करोड़ and less than. अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे 2 गाड़ियाँ दी होती इसको, तो इसका टोटल कितना होता है, 10 करोड़, है ना. टोटल कितना होता है, 10 करोड़. तो टोटल कितना हो जाता, 5 and 1 6 और 7 कार्स. तो टोटल कितना होता है, 21 and 10 31, 31 and 8 39. स्टिल इट इज पॉसिबल, राइट. स्टिल इट इज पॉसिबल. दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज. दैट मीन्स कि एक बची हुई जो नैनो है वो 11 करोड़ की जाएगी यहाँ पे. एक बच्ची जो नैनो है 11 करोड़ की जाएगी यहाँ पे. तो 11 and 14 is 25, 25 and 6 31 already. It cannot exceed 41. 31 already, it cannot exceed 41. है कि नहीं? Tell me yes or no. Tell me yes or no. Are we clear with this? तो अब अगर मैं इसको एक और गाड़ी देता हूँ, है ना. सी, 3 and 2 5 and 1 6 cars are already here. 6 cars are already here. That means कि this is 0, right? That means this is 0 and this is 31. I'll be clear with this. अगर मैं एक और गाड़ी देता हूँ तो 36 क्रॉस कर जाएगा, राइट. एक और कार देता हूँ 36 क्रॉस कर जाएगा. चलिए, तो दिस इज द पॉसिबिलिटी, राइट, है ना. बिकॉज सी, कोई भी कार आपकी हर जगह पर नहीं बिकी है. दैट मीन्स कि जैन का एक 0 बच रहा था, वो 0 आ गया यहाँ पे. दैट मीन्स कि जैन का एक 0 बच रहा था, वो 0 आ गया यहाँ पे. आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? This is going to be 31, not more than that. This is the particular order, right? This is the fixed order. Now let us come to the question. Fantastic question. Which model is not sold in Madras? तो मद्रास में कौन सा मॉडल नहीं बिक रहा है? मद्रास में कौन सा मॉडल नहीं बिक रहा है? Which model is not sold in Madras? Santro, है ना. Santro is not sold in Mumbai. Which of the following model is not sold in Mumbai? तो not sold in Mumbai, Alto भी नहीं है और Nano भी नहीं है ना. Alto भी नहीं है और Nano भी नहीं. Alto is not there. What is the sales in Jaipur? 41 CR. Now what is sales in Jaipur? 41 CR. तो ये एक एडिशनल हमारे पास डेटा दिया गया है बॉटम 2 क्वेश्चंस के लिए. तो क्या इसका आप कमेंट बॉक्स में बताओगे होमवर्क में, है ना. क्या इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे होमवर्क में. तो दीज वर द 2 सेट्स ऑफ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज दैट हैपेंड ऑन 30th of October, राइट, है ना. दैट हैपेंड ऑन 30th of October. तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो यार, है ना. लाइक के पैसे नहीं लगते, राइट, है ना. ना लाइक के पैसे लगते हैं, ना सब्सक्राइब के पैसे लगते हैं, राइट.
So these were the two sets that happened on 30th of October. Are we clear with this? Yes. Okay. मद्रास में वाई नॉट 12201 12201 दिस ऑल्सो गिव्स 31 करोड़ बिकॉज अगर बाबू मैं 12201 दे दूंगा है ना 122 तो बस हमारे पास तो जैन कार्स है ना, हमारे पास तो जैन सॉरी 12201 है ना 12201 12201 पॉसिबिलिटी है 12201 in Madras. So 2 and 2 4 and 1 5 and 1 6. 2 and 2 4 and 1 5 and 1 6 possibility है. This can be also be the possibility, right? है ना? This can also be the possibility. This can also be the possibility, right? बन सकता है. Each model is 1 2 2 0 and 1 मैं अगर करूँ तो ओके हाँ बन सकता है यस बन सकता है दिस कैन ऑल्सो बी द पॉसिबिलिटी राइट 12201 कैन ऑल्सो बी द पॉसिबिलिटी वी कैन गो विद दैट है ना वी कैन गो विद दैट इट डजंट मैटर बिकॉज आगे जाके आपको कहीं भी पूछा नहीं है ना आगे जाके 12201 कहीं पूछा नहीं है पॉसिबिलिटी बन सकती है राइट है ना 1 2 अगर मैं यहाँ पे दूँ एक मतलब कि रिड्यूस 4 करोड़ और यहाँ पे देने पड़ेंगे मुझे 4 करोड़ अब बन सकता है राइट पॉसिबल ठीक है चलिए सो विल गो फॉर वन मोर सेट दैट वी लेफ्ट बिहाइंड सी मैट्रिक्स अरेंजमेंट का सेट राइट है ना दिस इज मैट्रिक्स अरेंजमेंट का सेट है आगे के लिए विद दिस देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये सेट ओके क्या बोला है वर्ड मैट्रिक्स इज अ 5x5 ग्रिड into which the letters of the able has to be have been written so that each letters occurs once in each row and column of this. The letters may or may not be scrambled in a row or the column and blank cells appears in this. तो able को किसी तरीके से जंबल करके डाल दिया है ना able के जो लेटर्स हैं उसको कहीं भी किसी भी तरीके से जंबल करके डाल दिया है ठीक है कि नहीं टेल मी यस और नो ठीक है जंबल करके कहीं भी डाल दिया है लेटर्स एबल के तो दैट मीन्स कि दिस इज हाउ अगर कोई भी वर्ड हमको दिया जाएगा तो उस वर्ड के लेटर्स को जंबल करके या ऑन द गिवन कंडीशन हमको फिट करना होगा है ना ऑन द गिवन कंडीशन हमको फिट करना होगा ठीक है क्लूज अबाउट द ब्लैंक सेल्स एंड द लेटर्स लोकेशन ऑफ द वर्ड कैफे तो हमको जैसे कैफे फिट करना है राइट यहाँ पे आर गिवन बिलो लेटर लोकेशंस आर गिवन विदाउट काउंटिंग द ब्लैंक सेल है ना फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे सी है ओके बट ये स्पेस मेरा ब्लैंक है ये स्पेस मेरा ब्लैंक है ओके आगे के लिए दिस तो दिस विल नॉट बी काउंटेड फॉर एग्जांपल थर्ड लेटर डाउन द कॉलम 1 है ना थर्ड लेटर डाउन द कॉलम 1 तो अगर थर्ड लेटर डाउन द कॉलम 1 मीन्स इधर 3 और 4th रो तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ए है तो अगर ये तीनों के तीनों भरी ये दोनों भरी हुई फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स था यहाँ पे वाई था तो थर्ड लेटर कॉलम डाउन इज दिस बट इफ एनी ऑफ देम इज ब्लैंक है ना फॉर एग्जांपल इफ एनी ऑफ देम इज ब्लैंक देन थर्ड लेटर मान लो कि ये ब्लैंक है यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है तो दिस विल बी द थर्ड लेटर दिस विल बी द थर्ड लेटर टेल मी यस और नो है ना तो जहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस है वो काउंट नहीं होगा ठीक है जो ब्लैंक स्पेस है वो काउंट नहीं होगा ई इज सेकेंड लेटर अक्रॉस द फर्स्ट रो
तो E is second letter across the first row. See, these are the rows, right? 1, 2, 3, 4 and 5. तो E is second letter across the first row. Okay? अगर वो blank नहीं हुआ तो की बात है, अभी हम लोग जस्ट फिल कर रहे हैं. The fourth letter in the first column is C. The fourth letter in the first column is C. अभी क्लियर दिस, अगर कोई ब्लैंक नहीं हुआ तो की बात है. A is second letter in the column 2. Column 2 में A is the second letter. In column 4, E is immediately followed by F in the next cell. E is immediately followed by F in the next cell. तो मतलब कि कॉलम 4 में E एंड F इसी ऑर्डर में आएंगे. ठीक है, कॉलम 4 के अंदर ब्लैंक सेल इज द सेकेंड रो. ब्लैंक सेल in the second row is not the third column. Blank cell in the second row is not the third column. मतलब क्या कि ये वाला मेरा filled cell है. Blank cell in the second, अच्छा, blank cell in the second row is not second row and not third column. Okay, second row बोला है, not third column. That means कि this is filled. यहाँ पे कोई ना कोई लेटर होगा, है ना. Fourth letter in the column 3 is E. Fourth letter in the column 3 is E. See, अभी भी हम लोग जो भी लेटर्स फिल कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग कि वो सारे के सारे फील्ड के अकॉर्डिंग है. अगर कोई स्पेस खाली आ गई तो दैट विल शिफ्ट, दैट विल शिफ्ट. ओके, F is the fourth letter across the first row. F is the fourth letter across the first row. C is the fourth letter across the fourth row. C is the fourth letter across the fourth row. The letter in the third row, column 3 is F. The letter in the third row, column 3 is F. Are we clear with this? Tell me. Are we clear with this? Clarity है माइंड में? Yes, clarity है माइंड में. ठीक है, तो सी ये हमको फिक्स बोला है, राइट? तो इसकी पोजीशन फिक्स होगी, है ना. दिस इज फिक्स. ओके, बिकॉज ये डायरेक्टली बोल दिया कि थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम इज एफ, तो इसकी पोजीशन फिक्स होगी, है ना. ओके, ठीक है, बिकॉज इसको ब्लैंक पे डिपेंड नहीं करना है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये ब्लैंक पे डिपेंड नहीं करता, ये फिक्स होगा, है ना, ये फिक्स होगा. ठीक है, इन कॉलम 1 ए इज समवेयर अबाउट द ब्लैंक सेल. तो इन कॉलम 1 ए इज समवेयर अबाउट द ब्लैंक सेल. ठीक है, ए इज समवेयर अबाउट द ब्लैंक सेल. इन कॉलम 1 के बाद बात हो रही है. ठीक है, इन थर्ड रो द ब्लैंक सेल इज नॉट कॉलम 5. इन थर्ड रो द ब्लैंक सेल इज नॉट कॉलम 5, मतलब कि ये फील्ड है ना, मतलब कि ये फील्ड है. आर वी क्लियर विद दिस? टेल मी यस और नो. आर वी क्लियर विद दिस? क्लैरिटी है माइंड में? यस. आर वी क्लियर विद दिस? क्लैरिटी है माइंड में? आगे देखते हैं. आगे देखते हैं. लेट्स सी. अब क्वेश्चन सी, हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते यहाँ पे, और कुछ तो कर नहीं सकते. हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते यहाँ पे, कुछ और तो कर नहीं सकते. चलो देखते हैं. लेट्स सी, क्वेश्चन पे से कुछ हिंट मिलता है. Which letter from the following appears in the cell R5? R5, where R indicates third row and 3 indicates third column. है ना, तो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ? थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम. ओके, R5, 3 indicates थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम. अगर वो सारे के सारे ब्लैंक नहीं है तो की बात हो रही है ना. अगर वो सारे के सारे ब्लैंक नहीं हो तो की बात हो, मतलब हमको इसको फिल करना ही पड़ेगा, राइट? मतलब हमको इसको फिल करना ही पड़ेगा. चलिए देखते हैं. ओके, चलो, सो लेट्स हैव अ लुक कि क्या कहना चाह रहा है सेशन, क्या कहना चाह रहा है. ई इज सेकेंड लेटर अक्रॉस द फर्स्ट रो. ई इज सेकेंड लेटर अक्रॉस द फर्स्ट रो. ओके, तो सी हर एक में हमको कैफे फिट करना है. हर एक में हमको चारों के चारों आने चाहिए कैफे के. हर एक में हमको चारों को चारों आने चाहिए कैफे के. ठीक है, ये सर नो. फर्स्ट ब्लैंक में कहीं पे तो ए आएगा, है ना. उसने बोला है कि फर्स्ट में कहीं पे तो ए आएगा, तो लेट अस सी कि मैंने ए को यहाँ फिट कर दिया. तो ई इज सेकेंड लेटर इन द फर्स्ट रो, ये ट्रू हो गया फिर, राइट, है ना. ई इज सेकेंड लेटर इन द फर्स्ट रो, मतलब कि ये ट्रू हो गया. ठीक है, अब हमको बोला था कि ए कहीं ना कहीं ब्लैंक के ऊपर है. ए कहीं ना कहीं ब्लैंक के ऊपर है. ठीक है,
तो एफ है, ई है, तो सी। हमको पता है कि दिस हैज़ टू बी अ फील्ड। अब यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ई है, और इस तरफ ए भी ऑलरेडी है, तो दैट मीन्स कि दिस हैज़ टू बी सी, राइट, है ना। दिस मीन्स दिस हैज़ टू बी सी। आप एक लिए दिस, है ना, बिकॉज ये लेटर फॉर श्योर सी होगा, बिकॉज कोई भी लेट कॉलम वाइज एंड लेटर वाइज एक ही लेटर एक बार ही आएगा, है ना, सुडोगो, इट इज अ काइंड ऑफ सुडोगो। सी एफ ई है तो हमको चाहिए ए, हमको चाहिए ए कहीं ना कहीं पे, राइट, है ना। सी एफ ई है तो हमको ए कहीं ना कहीं चाहिए। चलो देखते हैं। नाउ दिस इज फिक्स, दिस फिक्स, दिस इज फिक्स एंड दिस इज फिक्स। जिसकी पोजीशन फिक्स है उसको हम लोग एक बार मार्क कर लेते हैं, राइट। जिसकी पोजीशन फिक्स हम लोग उसको एक बार मार्क कर लेते हैं, बिकॉज रेस्ट कैन शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द ब्लैंक साइज, डिपेंडिंग ऑन द ब्लैंक। ओके, ओके। अब फोर्थ लेटर इन द फर्स्ट कॉलम इज सी, फोर्थ लेटर इन द फर्स्ट कॉलम इज सी। ए इज second letter in the second column, second letter in the second column is second letter in the second column. So this is C, this is A. E मैं दे सकता हूँ, F में यहाँ पे दे C, F कैन नॉट कम हियर, F कैन कम हियर, राइट, F कैन कम हियर। अगर मैं F को फिल करूँ तो दिस कैन नॉट बी F, ये F नहीं हो सकता, ठीक है, ये वाला लेटर फिल लेटर, ये वाला F नहीं हो सकता। तो क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, दिस इज सी ई सी। थोड़ा दिमाग लगाओ, सी, इस एक में ही सी ई सी, तो सी दो बार तो हो नहीं सकता, सी दो बार तो हो नहीं सकता। तो दैट मीन्स कि उसने मुझे बोला है द फोर्थ लेटर इन द फर्स्ट कॉलम में सी। तो फोर्थ लेटर इन द फर्स्ट कॉलम मैंने सी तो डाल दिया, बट वो फिट नहीं बैठ रहा ना, तो मुझे उसको एक कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा नीचे, है ना, मतलब कि ऊपर कहीं ना कहीं एक मुझे ब्लैंक देना पड़ेगा, राइट, बिकॉज इट इज नॉट फिटिंग हियर। इफ सी इज नॉट फिटिंग हियर तो मुझे सी को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, एक नीचे, बिकॉज उसको मैं एक मुझे ब्लैंक देना पड़ेगा। एक ही कॉलम या एक ही रो में दो सी नहीं हो सकते। अब इसका पोजीशन भी फिक्स हो गया, अब इसका पोजीशन भी फिक्स हो गया, ठीक है कि नहीं, बताओ। यस, ठीक है। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस। चलिए अब आगे देखते हैं। हमको एक रो और हर कॉलम में सारे के सारे देने, राइट, सारे के सारे कैफे के लेटर्स आने चाहिए, दैट इज आवर टारगेट, दैट इज अवर टारगेट। अब ए कहीं ना कहीं एक ब्लैंक के ऊपर है, तो मतलब इन तीनों में से एक ब्लैंक होगा, इन तीनों में से एक मुझे ब्लैंक क्रिएट करना ही करना है, इन तीनों में से मुझे एक ब्लैंक मुझे क्रिएट करना ही करना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ए आ गया, ई आ गया, सी, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। ए आ गया, ई आ गया, सी यहाँ पे आ नहीं सकता। ओके, फर्स्ट रो में सी ही बचा हुआ है केवल, और सी यहाँ पे आ नहीं सकता, तो दैट मीन्स दिस हैज टू बी अ ब्लैंक, राइट, दैट मीन्स दिस हैज टू बी अ ब्लैंक, दैट इज फॉर श्योर, दिस हैज टू बी अ ब्लैंक, खाली। तो खाली जगह मतलब कि मुझे बोला था कि एफ इज द फोर्थ लेटर अक्रॉस द फर्स्ट रो, तो अगर खाली जगह मतलब कि एफ को हमें एक शिफ्ट करना पड़ेगा, खाली जगह मतलब कि एफ को हमें एक शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट, दिस हैज टू बी अ ब्लैंक कॉलम, तो दैट मीन्स कि एफ विल कम, will be shifted this side, तो that means कि C को यहाँ आना पड़ेगा, that means कि C को यहाँ आना पड़ेगा। तो now the position of this is fixed, now the position of this is fixed, again in same row 2C is not possible, 2 C's are not possible, right, तो that means कि ये जो मेरा C था उसको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब इसका काम हो गया, C इसका काम हो गया, राइट, इसका काम हो गया। अब ये वाला C कहाँ से आया था, C इज द फोर्थ लेटर अक्रॉस द फोर्थ रो, तो फोर्थ लेटर अक्रॉस द फोर्थ रो, तो मतलब मुझे एक शिफ्ट करना पड़ेगा रो वाइज, है ना, जहां से वो आया था उसी तरफ शिफ्ट होगा। तो रो वाइज अगर मुझे उसको शिफ्ट करना है तो ये रहा रो वाइज वो, दैट मीन्स कि मुझे कहीं ना कहीं एक ब्लैंक क्रिएट करना पड़ेगा। इसका पोजीशन फिक्स हो गया, इसका पोजीशन फिक्स हो गया। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, ठीक है। अब सी, एक ब्लैंक मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो इस कॉलम में एक और ब्लैंक तो आएगा नहीं, हर कॉलम में एक ही ब्लैंक होगा, तो सी एफ ई, है ना, सी एफ ई। तो चलिए देखते हैं, अभी भी ई का पोजीशन फिक्स नहीं है, अभी भी ई का पोजीशन फिक्स नहीं है। चलिए देखते हैं आगे और क्या बनता है, आगे और क्या बनता है। तो ये आ गया सी, ये आ गया ए,
तो मुझे इधर बच रहे हैं, लेट्स नाउ जम्बल समथिंग, राइट, है ना, एक गैम्बल खेलना पड़ेगा फिर हमको। अब सी, मुझे पता है कि फोर्थ रो में ई और एफ एक दूसरे के ऊपर आएंगे, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज फॉर श्योर। तो वो दोनों ई और एफ को मैं यहाँ बिठा सकता हूँ? नहीं बिठा सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे एफ ऑलरेडी है। दिस फॉर ई एफ दिस इज नॉट पॉसिबल, फॉर ई एफ दिस इज नॉट पॉसिबल। तो क्या मैं ई और एफ को यहाँ बिठा सकता हूँ? क्या मैं ई और एफ को यहाँ बिठा सकता हूँ? नहीं बिठा सकता, राइट। अगर मैंने ई और एफ को यहाँ बिठाया तो इन दोनों में से मुझे कोई एक ए रखना पड़ेगा। मैं ए को यहाँ भी नहीं रख सकता, बिकॉज यहाँ पे एक ए ऑलरेडी है। ए को यहाँ भी नहीं रख सकता, बिकॉज यहाँ पे एक ए ऑलरेडी है। दैट मीन्स द पोजिशन ऑफ ई एफ इज नॉट दिस। दैट मीन्स पोजीशन ऑफ ई एफ, वी कैन मिक्स इट ए, राइट। अच्छा सी, ई एफ यहाँ पे भी तो नहीं आएगा ना, ई एफ यहाँ भी नहीं आएगा एंड ई एफ मेरा यहाँ भी नहीं आएगा। दैट लीव्स मी द ओनली वे फॉर ई एफ इज दिस, राइट। दैट लीव्स मी द ओनली वे फॉर ई एफ इज दिस, है ना। बता रहा हूँ, सी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, है ना, बिकॉज ई एंड एफ को मुझे यही बिठाना पड़ेगा। अब अगर ई एफ को मैंने यहाँ बिठाया तो ए तो यहाँ आ नहीं सकता, बिकॉज ये ए का पोजिशन तो फिक्स है। दैट मीन्स ए हैज टू कम हियर, राइट। दैट मीन्स ए हैज टू कम हियर। अब अगर इस ए को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, दिस इज फिक्स, दिस इज फिक्स, दिस इज फिक्स, यस और नो? आर वी क्लियर विद दिस? टेल मी, दीज आर द फिक्स थिंग्स, राइट, दीज आर द फिक्स्ड थिंग्स, ये फिक्स है, ओके। So that means this A has to change its position. This A has to change its position. अब ये A आया कहाँ से था? ये A आया कहाँ से था? चलो देखते हैं। तो A कहाँ से दिख रहा है? A is second letter in the second column. तो second letter in second column, है ना? A is second letter in second column. बिठा सकते हैं? बिठा सकते हैं क्या हम इसको? बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते, राइट। सेकंड लेटर इन द सेकंड कॉलम, वो तो फिक्स है। सेकंड लेटर इन द सेकंड कॉलम, वो तो फिक्स है। तो मतलब कि इस ए की पोजीशन तो फिक्स है। अगर मैं इसको फिक्स करूं तो और क्या बन सकता है? सी। तो दैट मीन्स कि ये ई एफ की पोजीशन, सॉरी ये ई थोड़ी फिक्स है, ये ई एफ फिक्स है ना। तो ये वाला ई कहाँ से आया था? सी, ई इज सेकंड लेटर अक्रॉस द फर्स्ट रो, वो कंफर्म है, ठीक है। फिर ई इज इमीडिएटली अबव द एफ, फोर्थ लेटर इन द थर्ड कॉलम, फोर्थ लेटर इन द थर्ड कॉलम। दैट मीन्स कि वी नीड टू शिफ्ट दिस ई, राइट। सी, यहाँ पे एक ब्लैंक दिया है, तो ब्लैंक के अकॉर्डिंग फोर्थ लेटर इन द थर्ड कॉलम विल बी 1 2 3 एंड 4। तो मतलब कि ऊपर अगर ब्लैंक है तो ई नीचे शिफ्ट होगा, राइट। ऊपर अगर ब्लैंक है तो दिस ई हैज टू शिफ्ट बिलो, फोर्थ लेटर इन द थर्ड कॉलम, है ना। ब्लैंक है तो अब ये सही है, अब ये सही है, राइट, है ना। अब ये सही है, तो अगर ये सही है दैट मीन्स कि वी नीड टू शिफ्ट दिस ए दिस साइड। दैट मीन्स कि वी नीड टू शिफ्ट दिस ए दिस साइड। अब सी बन गया कैफे, फुल कैफे हैज बीन कंप्लीटेड, डन। कैफे हैज बीन कंप्लीटेड, इसका डन है, ठीक है। अब क्लियर विद दिस, इसका डन है, ठीक है कि नहीं? बोलो यस और नो। क्लैरिटी है माइंड में? क्लैरिटी है माइंड में? आर वी क्लियर विद दिस? ओके। अब यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ फिल करना है। ई नहीं हो सकता, एफ नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स दिस लेटर हैज टू बी कंपल्सरीली ए, राइट। दैट मीन्स दिस लेटर हैज टू बी कंपल्सरीली ए, है ना। बिकॉज सी भी रो वाइज है, सी मेरे पास कॉलम वाइज है, और ई एंड एफ मेरे पास रो वाइज है। दैट मीन्स दिस लेटर हैज टू बी ए। तो अब इनका पोजिशन भी फिक्स हो गया, राइट। दिस लेटर्स हैज टू बी ए, फिक्स है। अब सी, एफ आ गया, ए आ गया, सी आ गया। क्या मैं ई को यहाँ पे डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता, राइट, बिकॉज यहाँ पे ई ऑलरेडी है, उसका पोजीशन फिक्स है। दैट मीन्स द लेटर दैट हियर इज ई, इसका पोजीशन भी फिक्स है। दैट लीव्स द ब्लैंक स्पेस फॉर दिस, ये मेरा एक ब्लैंक स्पेस होगा। बताओ हाँ है ना? क्लैरिटी है? तो रो 3, सॉरी कॉलम 3 इज डन, कॉलम 5 इज डन, ओके। अब आते हैं रो 2 पे। अब सी, रो 2 में क्या मैं एफ को यहाँ डाल सकता हूँ? नो, बिकॉज एफ यहाँ पे ऑलरेडी है। तो दैट लीव्स द ओनली पोजीशन फॉर एफ इज दिस, दैट लीव्स द ओनली पोजीशन फॉर एफ इज दिस। आर वी क्लियर विद दिस? है ना।
तो only position for f is this, that means this is blank, that means this is blank. Very interesting question. See, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आने चाहिए बिल्कुल भी, है ना, बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. पॉसिबिलिटी है कि 30 मिनट लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो. तो पता चलना चाहिए कि कौन सा छोड़ना है कौन सा करना है, राइट. कौन सा छोड़ना है कौन सा करना है पता चलना चाहिए. दिस इज द की, दिस इज द की. आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, टेल मी. अब सी, हमें पता है कि यहाँ पे कौन आएगा, ई ही आएगा. E cannot be in this column, right? E cannot be in this column. So that means the only possibility for E is this, है ना? The only possibility for E is this. That means this has to be a blank. This has to be a blank. तो अगर ये blank है, तो that leaves the only position for this is C. The only position for this is C. Are we clear with this? Are we clear with this? Okay. C आ गया, A आ गया, F आ गया, सब कुछ आ गया. That means the only position for this is blank. Clarity है माइंड में, क्लैरिटी है माइंड में. चलिए, so C आ गया, A आ गया, E आ गया. That leaves the only position for this is F, C, F, E and that is A. तो A कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा. This is the final arrangement, right? दिस इज दी फाइनल अरेंजमेंट. बॉक्सेस हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन थोड़ा क्लियर हो जाए, है ना. बॉक्सेस हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन थोड़ा क्लियर हो जाए, राइट. यस और नो? ओके, दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट ऑफ द कैफे. को भी हटा देते हैं ब्लैंक जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज ब्लैंक ऑलरेडी हमको दिख रहा है कि वो खाली जगह, राइट, है ना, कि वो खाली जगह है. ई एफ का ऑर्डर सेटिस्फाई हो गया, ए ब्लैंक के ऊपर है वो भी सेटिस्फाई हो गया. This is the arrangement, right? This is the arrangement. Are we clear with this? Tell me yes or no. Fantastic arrangement. चलिए अब आकर देखते हैं क्वेश्चन में कि उसने क्या बोला है. ध्यान रखना. Which letter from the following appears where R indicates the third row, है ना. R indicates the third row. हमको ये चेक करना है. Okay, third row हमको चेक करना है, right? R indicates, sorry, क्या हो? R indicates the third row and 3 indicates the third column, है ना. तो 3 indicates the third column. ओके, R5, तो R5, तो 3 indicates the third column. तो अगर मैं बोलूँ तो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो मुझे आंसर में क्या मिल सकता है. थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम. कैन इट बी एफ? Can it be F, right? F can be the answer, right? F can be answer. Are we clear with this? ठीक है. Which of the following cell is a blank? P2, S1. P2 is not a blank. S1 is not a blank, right? P4, R5. R indicates third row and 3 indicates third column. So 3 indicates सही था वो, right? चलिए. P4 and Q4. P4 is a blank. No, Q4 is a blank. Q4 is a blank, right? Yes or no? So Q4 is a blank. Are we clear with this? Tell me yes or no. बाकी क्वेश्चन तो आप होमवर्क में ट्राई कर ही लोगे. बाकी के क्वेश्चन तो आप होमवर्क में ट्राई कर ही लोगे. Are we clear with this? है ना. Are we clear with this? क्लैरिटी माइंड में. अच्छा, एक और सेट था जो लास्ट आपका सेट था, राइट, है ना, जो लास्ट आपका सेट था. बट इन दैट सेट देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, है ना. देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज. लगभग 5 या 6 केसेस बनेंगे उसके अंदर. तो विल लीव दैट सेट इन द एग्जामिनेशन, राइट. विल लीव दैट सेट इन द एग्जामिनेशन. वी आर नॉट डूइंग दैट सेट एट ऑल. आर वी क्लियर विद दिस? तो जो भी हमने क्वेश्चंस करे हैं, बाकी के आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है. बाकी के आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, ठीक है. चलिए, विल सी यू विद मोर एंड मोर फैंटास्टिक वीडियोस. टिल देन हैव अ गुड डे एंड चैनल को लाइक करना है. Yeah, I think I'm live. Hello everyone. Good evening all of you. Welcome everyone to the session. So I hope the analysis of BRC and LRDI is over and you would have watched and taken up useful insights
from Shabana ma'am and Sagar sir on how to deal with the VRC part and how to deal with the LRDA part, what kind of questions were asked in this, and what questions you should have solved, where you should not have wasted your time. The purpose of the analysis session is that only, like precisely the reason we do this analysis session is to give you insights, okay, how you should have gone for the test. Okay, it's not like one who knows the answer of all questions is going to get good marks in the test. Obviously, after the test, whenever you would have analyzed, you would have seen a lot of questions were solvable. Okay, but in the exam, to make that actual decision in these 40 minutes and the current frame of mind, especially if I talk about QA, this is the last session on the analysis part. Also in the exam, QA is the last session as well. So by the time we come to the last session, it's a very different feeling. Okay, so already we would have solved VRC, then LR, and then coming to QA, and then starting to कैसे start करना चाहिए QA section. That's the first point. So when you are starting the QA section, first after LRD, I take 2 to 4 minutes break. This will be my suggestion. People might differ to this. 2 to 4 minutes का एक break ले लो, and in this break there would be an option C question paper करके, C question paper. Use this. Okay, C question paper में you use this. And then scan the entire paper. Okay, don't be in a hurry to solve. एक पहला question आया immediate करने लग गए. Don't be like in that state of mind. Take a break. वो LRDI से थोड़ा transition होने के लिए keep a calm mind. Read all the questions. Once you go through 10-12 questions, you will feel good about the paper automatically. If you are well prepared, you will automatically feel good about the paper. Okay, this is how the questions are for this year, and this is how I need to proceed. These are the questions that are from my strength areas. I can solve these questions and all. ये सब आराम से तुम कर पाओ. ठीक है, दैट इज वाई इट इज नीडेड टू लुक एट द टोटल पेपर, एंड एक सबकॉन्शियस में तुम्हारा ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनता जाएगा माइंड में, दिस इज हाउ आई नीड टू प्रोसीड. Because if I don't know what the next question is going to be and I haven't scanned the total paper, now think about that kind of a situation. Every next question is going to be a new question and a new challenge, and you have absolutely no idea next 40 minutes क्या होने वाला है. But doing this, at least you know next 40 minutes में तुम क्या करने जा रहे हो. Okay, that will definitely ease out the stress. Okay, तो यहाँ पे you pick 10 to 14 questions which were doable. आराम से इस मॉक में भी 10 to 14 questions are easily doable. तुम पिक भी कर सकते थे, तो इसको पिक कर लो, उसी को ही ट्राई करो. इफ यू आर गोइंग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट मिस्टेक. प्लीज डोंट डू दैट. इफ यू आर डूइंग, जो भी ऐसा कर रहे होगे अप्रोच एग्जाम को, नेवर एवर डू दैट. इफ यू आर स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन, उसको 2-3 मिनट 4 मिनट ट्राई किए, हो गया नहीं हो गया, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट्स द रॉन्ग वे ऑफ like approaching the test. You will never be able to maximize your score. Okay, either you do this, or the second strategy that I'll suggest for the QA part, you divide it into 10 minutes का slot. Okay, 40 minutes है total, 10 minutes 10 minutes 10 minutes 10 minutes, divide it into 10 minutes का slot. First 10 minutes 10 minutes में solve 5 questions each. First 5 questions first 10 minutes. Okay, पहला 10 मिनट में ही पहला 5 question. Okay, once the 10 minutes is up, you will never look at those 5 questions again. You will go to the next question. यहाँ पे जितना भी होना होगा उसी 10 मिनट्स में हो जाएगा. नेक्स्ट 10 मिनट्स अगेन 5 क्वेश्चंस, लास्ट के 10 मिनट 6 क्वेश्चंस. You can do it in this way, like you equally distribute the questions in 10 minutes slot. Either you do that, नहीं तो sometimes people do this also, 20 minute slot लेते हैं and then 11 questions करते हैं. वैसे भी कर सकते हो, meaning is same. 20 minutes ले लो, first 20 minutes में first 11 questions, next 20 minutes में next 11 questions. I'll never ever come back to the questions I tried in the first 20 minutes. अगर उसी में हुआ नहीं तो नहीं. But make sure you are looking at all the questions. पूरा questions देखना है, सारे questions समझना है, कैसा है, क्या है, कौन सा easy है, कौन सा doable है, which is difficult, where I should not waste my time. These all things you should have an idea before you start solving the paper. Okay, so once again, welcome everyone, people new to the class or watching live. Do like the session and also watch the previous analysis. I hope all of you had given this AIMT. If not, register yourself on the Unacademy. All India mock test सबके लिए free है. So before this also 3-4 AIMTs have been done. 3 more AIMTs to go for this month before the CAT exam. So do enroll yourself for the AIMT. Okay, and you can use this code to register for free. जो लोग नहीं दे रहे हो, because a lot of people would be giving AIMTs. So what I'll be doing is I'll be taking you through the questions that were asked in this AIMT paper, and we'll see कुछ questions के solution करेंगे. सारे questions के solution necessary नहीं ऐसा बैठ के solve करना, but I'll try and give you the solution of all the questions as much as possible. But we'll try and see which questions should have been done in the exam, which questions should have been definitely, like you should have definitely skipped those questions.
नहीं करने चाहिए थे वो क्वेश्चन. So these all things we'll try and see. This is a quick introduction of my profile, and not long back I was also at your place and I was also preparing. So whatever process you are going through, I have been through that. So I'm just sharing my experience, the way I give mocks, the way I look at the paper and I approach the exam, and it works for me. The mistakes that I did back then, and what I have learned from my mistakes, what I've learned from others' mistakes, I try and share in the session. So it will definitely give you some useful insights, and you can I hope you can use it into test when you are giving the mocks. Okay. So as I said, mocks and AIMTs का ये information है. November 6, 13 and 23 AIMTs to go. And a quick batch announcement on Unacademy Elite CAT batch November 10 से start हो रहा है. So you can join these batches. These are the batch highlights. चलो, without further delay, let us start. Let's take a look at the first question. In a clock, the hour hand completes one round in 24 hours. The moment you read this, ये पढ़ते ही माइंड में आ जाना चाहिए, it's a different kind of a clock. Because in general clock, one round of hour hand is actually 12 hours. क्योंकि अपना घड़ी में 1 से 12 तक ही रहता है, तो one round is actually 12 hours. But here one round is 24 hours. तो one round, that means अगर तुम hour hand को ले रहे हो, hour hand का one round, ठीक है, one round is 360 degrees, so time is 24 hours. 360 degrees के लिए 24 hours लग रहा है. तो 1 आवर में कितना डिग्री हो रहा है फिर? 15 डिग्री. और 60 मिनट्स में 15 डिग्री. तो यहाँ पे स्पीड ऑफ आवर हैंड इज हाउ मच? इट इज लाइक 0.25 डिग्रीज पर मिनट. whereas नॉर्मल क्लॉक में स्पीड इज 0.5 डिग्रीज पर मिनट. ये उसका हाफ है. ठीक है, दिस इज योर आवर हैंड. बाकी अप्रोच विल बी सेम. अगर कोई भी क्लॉक का स्टैंडर्ड 10-15 क्वेश्चन किए होंगे, दिस क्वेश्चन वाज अ डुएबल क्वेश्चन. ऑल्दो इसको हम मॉडरेट कैटेगरी में पुट कर सकते हैं, बट दिस इज अ डुएबल क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा क्लॉक्स में कितना होल्ड है. इफ यू हैव सॉल्व 20-25 क्वेश्चंस क्लॉक टॉपिक में, तो विल नॉट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व. बट आई विल नॉट रिकमेंड इट एज राउंड 1. राउंड 2 कर सकते हो. जो लोग बहुत कंफर्टेबल हो, राउंड 1 में भी इसको सॉल्व कर सकते हो. नाउ इफ आई लुक एट द मिनट हैंड, what is happening with the minute hand? Now the minute hand completes one round in 60 minutes, and ये नॉर्मल क्लॉक में भी होता है. नॉर्मल क्लॉक में भी मिनट को वन राउंड के लिए 60 मिनट्स लगता है. तो द स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज स्टिल द सेम. इट इज 6 डिग्रीज पर मिनट, बट द स्पीड ऑफ आवर हैंड हैज चेंज्ड. So what is the relative speed? Why are we taking relative speed? Because both the hands are moving and they are moving in the same direction, so relative speed is the difference. 6 minus 0.25, so it is like 5.75 degrees per minute. Relative speed का मतलब significance क्या है? How do you understand relative speed in this context? मतलब every minute तुम्हारा जो, अगर मान लो minute hand hour hand एक साथ है, and फिर next minute onwards both of them start moving, per minute तुम्हारा जो minute hand है hour hand से 5.75 डिग्रीज आगे जाएगा. ये 0.25 आएगा, वो 6 डिग्री चला जाएगा, तो 5.75 मिनट हैंड ने लीड लिया पर मिनट. एवरी मिनट मिनट हैंड 5.75 डिग्रीज आगे जा रहा है कंटिन्यूसली. दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव स्पीड. ठीक है, होप दिस इज मेकिंग सेंस. प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. ओके, वेयर एवर यू डोंट गेट इट, प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नाउ दिस इज द कॉन्टेक्स्ट. स्पीड मिल गया, रिलेटिव स्पीड मिल गया. देन द क्वेश्चन इज सेइंग, when the time in this clock changes from 9:15 am to 9:25 am, by how many degrees the angle formed by the hour hand and minute hand changes? तो 9:15 से जब 9:25 हो रहा है, तो एंगल कितना डिग्री चेंज हुआ? दिस इज द क्वेश्चन. तो व्हेन इट इज 9:15 to 9:25, इट इज हाउ मेनी मिनट्स? इसको और एक स्लाइड में करते हैं. तो 9:15 to 9:25, दिस इज बेसिकली 10 मिनट्स. अब मान लो 9:15 में द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स वी कैन कैलकुलेट, बट मान लो सपोज इट इज x डिग्री. x डिग्रीज था एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स. तो आफ्टर 10 मिनट्स वो एंगल बढ़ जाएगा, बिकॉज एवरी मिनट वो लीड लेता जाएगा. एवरी मिनट तुम्हारा मिनट हैंड लीड लेता जाएगा. कितना ना? 5.75. जो बोला कि एवरी मिनट मिनट हैंड गोज अहेड बाय
5.75 डिग्री। तो बस वही करना है। So in 10 minutes, angle covered by minute hand over the hour hand is like 5.75 into 10. I get 57.5 डिग्री। उतना डिग्री आगे से निकल जाएगा। पर खुद सोचो कितना इजी क्वेश्चन है। By how many degrees the angle found by hour hand and minute hand changes? कितना डिग्री है नहीं पूछ रहा है। पहले जितना डिग्री था अभी जितना डिग्री है कितना चेंज हुआ। तो पहले अगर x डिग्री था तो अभी क्या हो गया? अर्लियर इट वाज x डिग्रीज, नाउ इट इज x प्लस 57.5 डिग्रीज, क्योंकि 10 मिनट्स में इतना गेन हुआ है। बस यही अपना आंसर है। x था, अभी भी x है, बट उसके ऊपर 57.5 एक्स्ट्रा हो गया the gain in 10 minutes. So if you just calculate the speed of both the hands correctly, it's a very doable question. खुद सोचो, yes or no? Think about it. It's a very doable question if you just calculate the speed of both the hands and relative speed. तो clock का 15-16 question कर लो, let's say 20 questions, आराम से you can solve this. Okay, very easy concept, not very difficult, and I hope a lot of people would have solved this. Okay. Chalo, let us take a look at this one. Log a by b minus c. So this is a proportion. जब भी ऐसा तुम्हें देगा क्वेश्चन में, this is called as a proportion. Proportion मतलब when you equate ratios you get proportion, and whenever you get proportion always equate it to a constant. That's the standard method to solve. So log a by b minus c is equal to log b by c minus a is equal to log c by a minus b. This is given. Okay, and let us say this is equal to k. So I get log a is basically bk minus ck. Log b is ck minus ak, and log c is like ak minus bk. I get this. After you get this, फिर question क्या पूछ रहा है वो देखते हैं. a to the power b plus c. तो यहाँ पे let us assume the base to be 10. base 10 दिया नहीं है, log बोल दिया, कुछ भी base ले सकते हैं। जनरल केस में base 10 लेते हैं, उसको कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। जब भी base 10 होगा इट्स कॉल्ड एज कॉमन लॉगरिथम। एंड बेस ई लेते हैं तो उसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। तो कहीं पे कुछ नहीं दिया होगा तो बेस 10 ले सकते हैं। So this gives a is like 10 to the power bk minus ck. Similarly, b is like 10 to the power ck minus ak, and c is 10 to the power ak minus bk. So I got a, b and c individually. a, b, c का वैल्यू मिल गया। So try this now. ये लॉग का एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जो लोग लॉग का 40-50 क्वेश्चन, बिकॉज लॉग इज इंपॉर्टेंट, लॉग एज अ चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो लॉग का तुम 40-50 क्वेश्चन तो मिनिमम ट्राई करना चाहिए। एंड लॉग का जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा 40-50 क्वेश्चन, यू मस्ट हैव डेफिनेटली कम अक्रॉस अ क्वेश्चन लाइक दिस फॉर श्योर। So it's a must solve question in the exam again. So I'll have to calculate a to the power b plus c into plus b to the power c plus a. A to the power b plus c plus b to the power c plus a plus c to the power a plus b. So a is 10 to the power k into b minus c है, ये b plus c है, b square minus c square plus 10 to the power k into c square minus a square plus 10 to the power k into a square minus b square. ठीक है, तुम्हारा ये चीज आ गया। You have to find its minimum value. Okay, it is minimum, this sum when each term is minimum
एंड इस टाइप के केस में ईच टर्म का मिनिमम वैल्यू मतलब 10 नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो तुम्हारा पावर मिनिमम 0 आएगा। तो जब मैं a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी ले लेता हूँ, आई एम गेटिंग 10 to the power 0 plus 10 to the power 0 plus 10 to the power 0, so the minimum value is 3। इससे नीचे तुम जा नहीं सकते। हम इसको AMGM यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट उतना डिटेल जाके सॉल्व ना करके इट्स कॉमन सेंस, तीनों को इक्वल ले लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज तुम जब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, इसका और एक वे है टू लुक एट इट, दैट इफ यू मल्टीप्लाई a to the power b plus c, मान लो ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं b to the power c plus a into c to the power a plus b, तो ये सारे ऐड हो जाते हैं, तो यू वुड हैव गॉट 10 to the power 0 which is 1, so I would have got product is constant, so product constant, this implies my sum will be minimum, so direct rule maximum minima का, product constant sum is minimum when the numbers are equal, and if the numbers are equal, ये तीनों टर्म इक्वल है, each of them is equal to 1, so a is equal to b is equal to c, सबका पावर है 0, you can solve it that way। hope it is making sense। I'll not say very easy question, but जो लोग log का प्रैक्टिस किए होगे अच्छे से, would have come across a question like this for sure। okay, moderate में इसको पुट कर सकते हैं। hope this is clear, because you need to know how to solve। दो चीजें मैंने बोला यहाँ पे, whenever you see a proportion you have to equate it to a constant, and then each term को वहाँ पे constant के point of view से निकालना, जैसे log a is k times b minus c, log b is k times c minus a, and so on। फिर a b c को मैं पावर 10 में दिखाया, तुम कोई भी पावर ले सकते थे, नो इशूज, 10 ले लिया इन जनरल, 10 का एज सच देखो कोई यूज है नहीं, तुम कोई भी बेस लेते, यहाँ पे सबका पावर 0 करके अगेन 1 आता है, तो बेस डजंट मैटर, जस्ट टेक एनी रैंडम बेस। ओके, तो कहाँ पे कुछ नहीं दिया तो 10 ले लो, एंड देन वंस यू रीच दिस आई हैव टू मिनिमाइज द सम, तो सम अगर मिनिमम है, प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो वो तब होगा जब सारे नंबर्स इक्वल है। इससे जस्ट अ बेसिक रूल मैक्सिमम मिनिमम का, ये दो रूल है, सम कांस्टेंट प्रोडक्ट मैक्सिमम एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट सम मिनिमम व्हेन द नंबर्स आर इक्वल और अप्रोचिंग टू बी इक्वल। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऑल तो वेरी रेयर बट पूछे जाते हैं, तो अगर पता है तो वी कैन इजीली सॉल्व। All right, so people attending live, do let me know if these questions are making sense to you or not। so 2 questions यहाँ पे हो गया, let us take a look at the third one। LCM of two natural numbers a and b where a is greater than b is 2431, find the minimum possible value of a plus b। LCM of two natural numbers a and b is 2431, so I'll take, let k be their HCF। okay, if k is the HCF, I can write a as k into small a and b as k into small b, and their LCM as k into small a into small b, ka kb, and this is k small a small b। ठीक है, so LCM is given as 2431। so before getting deep into the question, ये 2431 को थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं। how much is 2431? 2431 if you break it is 11 to the 22, 23, 221, and then 13, 1, 7, so basically 11 into 13 into 17, so I can write k into a into b is equal to 11 into 13 into 17, तो बेसिकली 3 केस आएगा, ये 3 नंबर है, यहाँ पे भी 3 नंबर है, 3 केसेस आएंगे। तो केस 1, I'll take k as 11, so a into b is like 13 into 17, so capital A is like 11 into 13 and capital B is like 11 into 17, so it is like 143 and this is 187, तो फिर यहाँ से a प्लस भी मिल जाएगा मुझे, 143 plus 187, so 190, 290, 330। तो सिंपल रूल अगेन HCF LCM का, ये वाला हमेशा माइंड में रखना है, ये रूल,
if HCF of two natural numbers is k, then first number is k into small a and this is k into small b, where small a and small b should always be co-prime to each other. मतलब ऐसा ये रूल बोलने के लिए है, बट यू कैन अंडरस्टैंड. करेक्ट करेक्ट प्रेरणा, करेक्ट. ये बोलने के लिए है, बट तुम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो इसको, दैट ए बी इसीलिए कोप्राइम होगा बिकॉज वंस यू हैव टेकन आउट वॉट एवर इज कॉमन, ऑब्वियसली वो कोप्राइम होगा. बट यहाँ से और एक चीज भी हम नोट कर सकते हैं, मैं के को जितना कम वैल्यू दूंगा ए प्लस बी का उतना ज्यादा वैल्यू होगा बिकॉज बड़े प्राइम नंबर्स वहां पे जा रहे हैं. तो बेसिकली इफ माई ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज ए प्लस बी, so I shouldn't try for k equal to 13, I should directly try for k is equal to 17. तो k को 17 लेके देखते हैं. तो small a into small b is like 11 into 13. समझ रहे हो? small a into small b, तो यहाँ पे कैपिटल a कितना आ जाएगा? 17 into this again 187 and then 17 into 13, ये और भी बड़ा नंबर आ जाएगा 221. तो अगेन नॉट द केस. एंड मैं अगर k को 13 लेता हूँ, अगेन आई विल गेट द सेम थिंग. तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है सोचो. इफ आई एम टेकिंग k एज 13, तो अगेन कैपिटल A इज 13 into 11 143, कैपिटल B इज 13 into 17 वही 221. फिर से कुछ मिनिमाइज नहीं हुआ. तो द प्रॉब्लम इज k इंटू ए एंड k इंटू बी मल्टीप्लाई होगा ही होगा, तो वो बड़ा नंबर आ जाएगा वहां पे. तो आई शुड ब्रेक इट इन सच ए वे दैट फिर वो मल्टीप्लाई जैसे ना हो. तो k का वैल्यू उतना मिनिमम हमें रखना पड़ेगा. तो व्हाट आई डू इज, यहाँ पे मुझे विजिबल है 3 फैक्टर्स 11 13 एंड 17, बट 1 इज ऑल्सो फैक्टर. 1 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17, आई कैन टेक दिस ऑल्सो. तो अगर मैं k को 1 लेता हूँ, if I take k as 1 and मैं a को ले लेता हूँ 11 into 13 and b को ले लेता हूँ 17, so I'll get capital A as 143 and capital B as 17 and this is the minimum possible sum. a plus b देखो 160 आएगा, इसके नीचे तुम जा नहीं सकते. बाकी सब केसेस में you'll get bigger numbers 221 187, तो ये तो हो गया यहाँ पे 408. समझ रहे हो? Are all of you clear with this? हाँ, वो केस भी है a is greater than b, मतलब मैं यहाँ पे उल्टा कर सकता हूँ. एक्चुअली a greater than b doesn't matter, बट ठीक है, यहाँ पे उल्टा भी कर सकते हैं. मान लो मैं इसको b ले लेता हूँ, इसको a ले लेता हूँ, तब तो हो जाएगा. किसी एक को एक वैल्यू देना है प्रेरणा, तो उल्टा भी लिखो तो भी हो जाएगा वही सेम थिंग. ठीक है, यहाँ पे भी वही a इंटू बी, मैं ए बी को उल्टा कर लेता हूँ बिकॉज इफ वी हैव टू मेंटेन a इज ग्रेटर देन b, तो ए बी को जस्ट उल्टा कर लेते हैं. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. दिस रूल इज वेरी यूजफुल. यहाँ पे जो ऊपर मैंने बॉक्स में लिखा HCF LCM में ये रूल बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है एंड वेरी यूजफुल. अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. okay, although इसको थोड़ा अगेन मॉडरेट टू टफ, इफ यू हैवंट सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दिस, उतना माइंड में आना इज नॉट इजी. नॉट इजी, यू नीड टू ब्रेक एंड सॉल्व. ये रूल अगर पहले यूज किए होगे, दिस इज अ मस्ट सॉल्व क्वेश्चन फॉर यू. इफ यू हैव नॉट यूज दिस रूल, मे बी अ राउंड 2 क्वेश्चन वेयर यू कैन ट्राई आउट. बट अगर वो ये रूल पता नहीं दैट दिस इज हाउ आई नीड टू टेक द एलसीएम एज k into a into b, तब डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना. होप इट गेव यू सम आइडिया ऑल ऑफ यू. Let us come to this one. The marks scored in physics by P, Q, R and S form an increasing geometric progression. तो ये P, Q, R and S form an increasing GP. Increasing GP means मेरा R must be greater than 1. Common ratio है greater than 1 होगा, तभी तो next term subsequent terms बढ़ता जाएगा increasing. If the marks scored by R were 34 whole 6 by 11% less than the sum of marks scored by P and Q together, then the marks scored by S were what % more than the marks scored by Q. ठीक है,
So there are 4 persons P, Q, R and S. So GP मतलब AR square and ARQ. Marks scored by R was this much percent less than the marks scored by P and Q together. Now ये जो number है 34 whole 6 by 11, तो 11 4 जा 44, carry 4, 11 3 जा 33 plus 4 37. So it is basically 380 by 11%. ये आ गया यहाँ पे 380 by 11%. 34 whole 6 by 11% को मैं 380 by 11% कर दिया. So marks scored by R were this much percent less than the marks scored by P and Q. That means R का है AR square. So this is 100 minus 380 by 11% of A plus AR. तो A तो कैंसिल ही हो गया यहाँ पे. So I get R square is equal to, पूरा ये क्वेश्चन बस सॉल्व करना है और क्या. Okay. This is like 1100 minus 380 by 1100 into 1 plus R. So 1100 R square is equal to, this is 0, 10 minus 8 is 2, 721 plus R. So basically this gives you a quadratic in R, isn't it? You will get a quadratic in R. So from this, can you get the value of R on? Question is not difficult, we just have to solve. Just a little lengthy, just a matter of time that you solve, but you will get a quadratic in R which will give you the value of R. यहाँ पे इसको solve करोगे तो it will give you the value of R. Quadratic तुम लोग solve कर सकते हो. I don't need to elaborate on that. Quadratic आराम से solve कर सकते हो. तुम्हें इसका दो रूट आएगा. एक रूट आएगा 6 by 5 and the second root here will be minus 6 by 11. But I will not take minus 6 by 11 because the question is saying it forms an increasing GP. तो मैंने पहले से लिखा था R must be greater than 1. So I will go with 6 by 5. Now once you know R, उसके बाद बाकी values तुम आराम से निकाल सकते हो. Then the marks scored by S were what percent more than the marks scored by Q? What will be the marks scored by S? अगर ये 6 by 5 लेते हो तो 216 by 125A and Q का आ जाएगा 6 by 5A. तो बस कंपेयर कर लेना how much more, what percentage more. 216 by 125A minus 6 by 5A by 6 by 5A into 100. This is one way. Or what do you understand by R is equal to 6 by 5? It is like 1 plus 1 by 5. That means the subsequent term is 20% more. The subsequent term is 20% more क्योंकि 1/5 हो रहा है. ये परसेंट है ना प्रेरणा? Suppose R would have been 20% less, तो 80% होता. R अगर इनका सम से 20% लेस है तो R is 80% of their sum. तो 80% में लिखता है 80% is 80 by 100. अब इतना परसेंट है तो this much by 100. ठीक है. परसेंट है इसीलिए एक और एक 100 आएगा. प्रेरणा, कार्तिक, ठीक है. So as I was saying, you can calculate it in this way. और जैसे ही 6 by 5 आता है which is 1 plus 1 by 5. 1 by 5 means every subsequent term में जब GP में जा रहा हूँ 20% 20% 20% ग्रो हो रहा है. तो पूछ रहा है तुम Q से S जाओगे तो कितना परसेंट होगा S मोर. तो 20% दो बार हो जाएगा तो सक्सेसिव कर सकते हो. 20 plus 20 plus 20 into 20 by 100. तो 44% डायरेक्टली. ओके.
अगेन क्वेश्चन विच इज अ मैटर ऑफ सॉल्विंग, लॉजिकली बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी होगा सॉल्व करने में, क्योंकि एक तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, फिर ये 34 और 6/11 उसको सिंप्लीफाई करके लाओगे, पुट करोगे इक्वेशन में, एंड वंस यू गेट दैट उसके बाद फिर से सब परसेंटेज चेंज निकालना है, तो थोड़ा लेंदी है, बट लॉजिकली इट्स नॉट डिफिकल्ट. ओके, होप दिस इज मेकिंग सेंस. Let us take a look at this one. P is the set of all 7-digit numbers which can be formed using the digits. तो available digits अपने पास क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7. These are the available digits. Exactly once use करोगे, so no repetition. Repetition is not allowed. Q is the set of all numbers. पहले बोला P is the set of all 17-digit numbers. तो N of P कितना होगा? How many 7-digit numbers can I make using this? 7 factorial. तो 5040. तो P में 5040 7-digit numbers है. Now Q is the set of all numbers in P which are not divisible by 5. If all the numbers of Q are arranged in ascending order, which is the 1220th number? ठीक है, अब सोचो दो चीजें यहाँ पे करना है. P से I'll have to remove, तो Q पहले निकालना है. Q is a set of all 7-digit numbers that aren't divisible by 5. तो पहले how many are divisible by 5? तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Any number that is divisible by 5 should have a 5 at the end, और तो कुछ ऑप्शन है नहीं. तो there are 6 factorial numbers. तो तुम्हारा कार्डिनलिटी ऑफ Q सेट में कितने नंबर्स आएंगे ना? 5040 माइनस 720. तो 40 माइनस 20 इज 20, 50 माइनस 7 इज 43. तो अभी 4320 नंबर्स मेरे Q सेट में है. This is the first part of the calculation. Hope this is making sense to all of you. I had 7 digits. कितने नंबर्स बना सकता हूँ? 7 फैक्टोरियल. तो 5040. उसमें से कितने नंबर्स डिविजिबल बाय 5 है ना? 6 फैक्टोरियल. उतना निकाल लो. तो 4320 नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 5. अब ये सारे नंबर जो मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ, व्हाट इज द 1220th नंबर? व्हाट इज द 1220th नंबर? बेसिकली रैंक टाइप का ही क्वेश्चन है. तो पहले सारे नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, जैसे ना 1220th नंबर जब तुम करोगे 1 से स्टार्ट होंगे. तो हाउ मेनी नंबर्स कैन आई टेक स्टार्टिंग विथ 1? अगर स्टार्टिंग मेरा 1 है, 1 2 3 4 5 6 7. 0 तो अपना कहीं पे है नहीं, तो दिस मेक्स थिंग्स इजियर. तो ये 1 हो गया, तो आई हैव 6, बट यहाँ पे मैं 5 नहीं रख सकता. तो आउट ऑफ 6 चॉइसेस यू हैव 5 चॉइसेस हियर. देन 5 4 3 1 2 3. sorry just a minute. और 6 डिजिट करना है ना यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6. फर्स्ट 1 पे है, असेंडिंग में जा रहे हैं तो पहले 1 खत्म करें. तो दिस प्लेस कैन बी टेकन अप इन 5 ways. देन 5 4 3 2 1. तो 5 into 5 फैक्टोरियल हो गया मेरा यहाँ पे 600. Similarly, starting with 2, again same logic, another 600 numbers. तो हो गए अभी 1200 नंबर, और 20 नंबर कैलकुलेट करने हैं. सोच पा रहे हो क्वेश्चन कैसे ब्रेक कर रहे हैं? हाउ डिड आई ब्रेक द क्वेश्चन? तो 600 600 1200 नंबर्स मेरे हो गए. अभी 20 नंबर जाने. 1 2 के बाद वो क्या आएगा? 3 ही आएगा. तो ऑप्शन में देखो पहले सब 3 है. 3 के बाद देखो यहाँ पे दो नंबर, ये 314 314. मोस्ट लाइकली ये दोनों तो होगा ही नहीं, बट अगर 312 लेते हैं पहले, मान लो मैं 312, नेक्स्ट 3 से स्टार्ट होगा, पूरा लेंगे तो 600 डिजिट. तो 3 के बाद नेक्स्ट लॉजिकली 1 आएगा, देन 2 आएगा. अगर मैं 312 रखता हूँ और 4 डिजिट है, 1 2 3 4,
but the last place has 3 choices. तो 18 नंबर्स हो गया, तो 1 to 18 नंबर्स हो गए. दैट मीन्स 312 सीरीज इज ओवर. नेक्स्ट 313 तो नहीं आ सकता, 314 आएगा. तो 312 जहाँ पे ये दो आंसर तो हो नहीं सकता, या तो ये आएगा नहीं तो ये आएगा. नेक्स्ट लॉजिकल नंबर क्या है? 314. नेक्स्ट आएगा 2 5 6 7. दिस इज द 19th नंबर. देन 314 2 5 7 6. दिस इज द 1 2 2 0 नंबर. सिंपल काउंटिंग, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा नहीं है. तो ऑप्शन डी. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अगर पढ़े होंगे पीएनसी में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बस वही कर लो. एंड कॉम्बिनेशन थ्योरी आधे घंटे का काम है. ये आधा घंटा वो आधा घंटा, बस उतना कर लो, उतना कर लो. जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा ये चलो, इफ यू हैव नॉट रेड पीएनसी दिस विल बी अ लिटिल टफ, छोड़ सकते हो. जो पढ़ा है उसके लिए ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं है. ओके, बट यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम इफ यू आर नॉट थॉरो ऑन दिस पार्ट. वैसे बहुत से क्वेश्चन ऐसे तो आएंगे नहीं, बट डेफिनेटली इफ आई वर यू आई वुड रीड एटलीस्ट हाफ एन आवर ये दोनों को. बिकॉज ये चलो 7 डिजिट था, अगर 5 डिजिट का दे देता दिस वुड हैव बीन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है यार. जस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. प्लेस काउंट करो, कितने पॉसिबल डिजिट्स मतलब नंबर्स हो रहे हैं लिखते जाओ, बस उतना ही है. मेक सेंस? I hope this is clear to all of you. Let us go to the next one. The chords AB and BC of a circle of radius 10 cm. ये radius 10 है, ये भी 10 है. ये 12 12 है. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AC. तो ये तो पहले 90 डिग्री होगा. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ओके, तो मान लो दिस इज H. लेट OD इज इक्वल टू H. तो BD इज लाइक 10 माइनस H, क्योंकि टोटल तो रेडियस है OB. So I get CD, पहले पाइथागोरस थ्योरम में I can get CD square is equal to 10 square minus H square, and I'll get this one. AD square is equal to 12 square minus 10 minus H whole square. And because CD and AD are equal, तो इन दोनों का RHS इक्वल है. पाइथागोरस थ्योरम सिंपल, बस वही सॉल्व कर लो. यहाँ पे 10 square minus H square is 12 square minus 10 minus H का होल स्क्वायर. So this is 100 minus H square, 144 minus 100 plus H square minus 20H. तो माइनस H square तो कैंसिल हो गया. तो 20H इज इक्वल टू सम वैल्यू आएगा यहाँ पे 44. 100 से माइनस हो जाएगा 56, वैसा कुछ. 144 माइनस 100 इज 44. उस साइड में आके 100 से माइनस हो जाएगा 44 56. तो H का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 2.8. Once you get H as 2.8, how much is like CD? 10 square minus 2.8 का होल स्क्वायर. हंड्रेड माइनस दिस इज 7.84. 0.16. 9216. 92.16. It is like 96 का स्क्वायर. 9.6. and CD is equal to 9.6, तो AC उसका ट्वाइस आ जाएगा 19.2. Is this making sense or am I going a little fast? Let me know. This is a doable question. Pythagoras theorem में we can solve this.
ओके, तो ऐसा करके व्हाट यू हैव टू डू इज व्हेन एवर द एग्जाम इज ओवर, आराम से बैठ के सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले समझो कि क्वेश्चन था क्या, कैसे अप्रोच करना था, कैसे सॉल्व करना था, मैंने क्यों नहीं किया, व्हाट वाज गोइंग इन माय माइंड, व्हिच कॉन्सेप्ट डू आई नॉट नो, which concept I know I still couldn't solve, why I couldn't solve, why did I assume the question to be difficult, if I made a calculation mistake, why, if I'm making a silly mistake, why, if I'm not able to figure out the approach, why. You will have to always think on this thing. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें लगता है कि बस प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये बुक खत्म कर लेंगे तो हो जाएगा. नॉट दैट सिंपल. तुम बुक खत्म ना भी करो फिर भी हो सकता है, अगर तुम सोचने वाले पर्सन हो. इफ यू आर समवन हु कीप्स थिंकिंग कॉन्स्टेंटली ऑन द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से तुम दो तीन क्वेश्चन के बारे में सोच पा रहे हो, यू आर एबल टू रिलेट, यू आर एबल टू लाइक रिकॉल व्हाट यू हैव सॉल्व बिफोर, it will like come to your advantage like anything. When I see a new question, suppose, what is the problem solving process in the mind? Moment you see a new question, problem solving process यही है that you relate to the question that you have solved before. Let us take a look at this one, question number 7. From the first 10 natural numbers, 5 consecutive numbers are left out. The sum of the remaining numbers is 1746. तो जब मैं consecutive natural numbers लेता हूँ 1 2 3, so the sum is n into n plus 1 by 2. 5 consecutive numbers are left out. So n into n plus 1 by 2, the actual sum is greater than the sum obtained 1746. So n into n plus 1 is like 3492. यहाँ से एक अप्रॉक्स आइडिया ऑफ n आ जाएगा तुम्हें. ओके, व्हाट इज द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ n? क्लोज टू 3492 आना चाहिए. तो n का वैल्यू आसपास कितना आना चाहिए? So when I take 60 square, n as 60, तो 60 का स्क्वायर आता है 3600. तो 60 into 61 तो हो सकता है. If you take it as 59, you get 3481. तो बहुत क्लोज आ रहा है, ऊपर से 5 नंबर भी तो छोड़ने हैं. ओके, तो तुम दो चीजें लेके चेक कर सकते हो. n को एक बार 59, तो 59 into 60 उसका वैल्यू, एंड n को एक बार 60, तो 60 into 61 उसका वैल्यू. तो फिर क्या मिस आउट हुआ है वो पता चल जाएगा. इफ यू आर गोइंग विथ लेट्स से 59 into 60, तो ये 0 हो गया. 6 9 54 कैरी 5, 6 5 35, 3540 आ रहा है, एंड 3492 है. तो कितना गैप इनमें हुआ? 3492 में 8 हो गया, 3500 48. तो 5 नंबर का सम 48. 5 कंसेक्यूटिव नंबर, उनका सम 48 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उनका एवरेज कितना आएगा? 9.6. 9.6 कैसे एवरेज हो सकता है? So if I take 60 into 61, 0, 6 1 is 6, 6 is 36, 3660. अब कितना गैप आ रहा है देखो, 3492, तो ये आ जाता है 168. दो चीजें हो रहा है, या तो 48 नहीं तो 168. Is this making sense? आई होप ये सबको समझ आ रहा होगा. अगर मान लो n into n plus 1 इज दिस थिंग, n into n plus 1 इज 3540, तो तुम्हारा सम आ जाता है 1746 पे 24 ऐड कर लो, 1770 बेसिकली. इन दिस केस लेट मी राइट इट हियर. इफ आई टेक n as 59, my sum is supposed to be 1770, but sum आया 1746. So gap is 24. Which 5 consecutive numbers can I add to get 24? Can I add this 3 4 plus 4, 7 plus 5 12, plus 6 18, फिर 24 नहीं बन सकता.
25 हो जाएगा। 3+4+5+6 नहीं हो रहा है। 2+3+4+5 कम हो जाएगा, 24 तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। n 59 इसीलिए नहीं होगा। n को अगर मैं 60 लेता हूँ, राहुल सवाना मैम का एक्सप्लेनेशन, राहुल ये 3 फेज में हुआ। तो फर्स्ट फेज में सवाना मैम का था, तो वंस दिस सेशन इज ओवर टोटल तुमको एक साथ मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो चेक करना, वहाँ पे सवाना मैम का एनालिसिस है, ठीक है। अंडरस्टूड। तो सिमिलरली के 60 लोगे तो इतना यहाँ पे आया था अपना सम 3660, तो इट इज लाइक 1830 एंड एस डैश इज दिस। तो वैसा करके चेक करना होगा कि कहाँ पे पॉसिबल है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड आउट व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सम दैट यू कैन मिस। अगर ये दोनों पे नहीं हुआ, n60 59 एंड 60 से 61 चलेंगे एंड सो ऑन। समझ रहे हो? अगेन दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट डेफिनेटली लेंथी। तो एग्जाम में तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को राउंड 1 में करना है, कौन से राउंड 2 में करना है। व्हाट इज द राउंड 1 क्वेश्चन विच यू आर डेफिनेटली श्योर अबाउट द लाइक अप्रोच, इसको इसी वे में ही सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई नो एग्जैक्टली हाउ टू सॉल्व, जस्ट अ मैटर ऑफ 1 minute 2 minute आई विल गेट द आंसर राउंड 1। लग रहा है मैं कॉल कर सकता हूँ बट इट विल टेक स्लाइटली लिटिल बिट मोर टाइम राउंड 2। Your approach always should be in that way. If you are solving in that manner, you will always optimize your attempts and never waste time, because तुम्हें पता है ये मेरा होगा या नहीं होगा। I always talk in the classes between the seeing the answer versus finding the answer. Very important thing to understand. Seeing the answer versus finding the answer. If you only try for finding the answer, you will no amount of time will be sufficient to solve 40 questions. If you are just trying, if let's say for someone who is very good and doesn't matter question easy है difficult है, कौन से चैप्टर से, algebra arithmetic numbers सब सेम है उसके लिए, तो those kind of people can just go one question at a time and they will solve all questions. But if I am not that good, I should develop this like habit of seeing the answer, because seeing will help me select. What do you mean by seeing the answer? जैसे मैं पढ़ा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ते ही my mind should be able to trace the steps in which I am going to move forward. किस वे में आगे जाना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इफ आई एम नॉट एबल टू ट्रेस द स्टेप्स, मैं रैंडम बस ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं शायद हो जाए, दैट्स अ रॉन्ग वे टू अप्रोच द एग्जाम। वेरी लाइक ट्रबल थिंग। इट विल लाइक क्रिएट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन द एग्जाम एंड तुम्हें पता नहीं चलेगा, टाइम भी वेस्ट हो रहा होगा, अटेम्प्ट्स भी कम हो जाएंगे। डोंट डू दैट आई विल ट्राई एंड देन सी हो रहा है होने, पहले से डेवलप द हैबिट ऑफ सीइंग द आंसर। हाउ इज दिस क्वेश्चन गोइंग टू बी सॉल्व, दीज आर द स्टेप्स। I don't know what the answer is. Eventually, I'll be able to find the answer, but I right now can see the answer. Small difference, seeing the answer versus finding the answer. चलो ये क्वेश्चन वैसे सॉल्व करना, ठीक है, नॉट अ डिफिकल्ट वन। नंबर्स का ये जो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2, ये बहुत बार यूज होता है, ये n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। तो इसका आंसर 56 आएगा। What is the greatest possible number that is left out? 56. That means तुम्हारा 56, 55, 54, 53, 51 ये 5 नंबर लेफ्ट आउट हुए हैं, तो 200 के आसपास डिफरेंस आना चाहिए। तो और थोड़ा हायर वैल्यू पे जाओगे तो पहुंच जाओगे। चलो लेट अस सी दिस। द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज नॉट टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, बट डेफिनेटली सोल्यूशन तो तुम्हें इसका मिल जाएगा। जो लोग टेस्ट दिए यू हैव द सोल्यूशन। तो मेरे को आगे और कुछ सोल्यूशन में ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, सोल्यूशन तो हर एक के पास है। व्हाट शुड योर थिंकिंग प्रोसेस, तो वो मैटर करता है। ये बेस सिस्टम से आ गया ये क्वेश्चन, देखो the people of this place they use a base n for the counting system, ठीक है, where n is less than equal to 18. A sleepy accountant interchanges the digit of a 2-digit number in base n while making an entry in his ledger and ends up putting a smaller number than the original. तो interchange करके एक smaller number than the original. The value of that error in decimal system is equal to 64. That means कोई तो एक 2-digit number था AB, उसको interchange करके उसने BA लिख लिया,
So the original number was higher and the interchange number is smaller and uska value in decimal is 64. So it is like an plus b minus bn plus a. This is equal to 64. So a minus b into n minus a minus b is equal to 64. So I get a minus b into n minus 1 is 64. So these are like factors. So तुम कितने ways में 64 को लिख सकते हो? In how many ways you can write it as 64? 1 into 64. अगर तुम n minus 1 को 64 लोगे तो n आ जाता है 65. Not possible. और I can write 2 into 32. फिर n का वैल्यू आ जाता है 33. Not possible. C तो नहीं होगा. I can write 4 into 16. फिर n का वैल्यू आ जाता है 17. Possible. I can write 8 into 8. फिर n का वैल्यू आ जाता है 9. That is also possible. और तो कुछ नहीं हो सकता. फिर तो रिपीट होगा the same thing. Is this making sense? दो वैल्यू ही पॉसिबल है. All right. Let us come to this one. Inequality. Inequality का ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. 2x square plus 3x minus 5 divided by 2x square minus 17x plus 30 is less than 0. A lot of people take this and directly multiply here. Don't do that. If this ratio has got a sign, less than 0 means negative, so there are two components which contribute to this negative sign. Numerator by denominator is negative, so maybe numerator negative, denominator positive, और numerator positive, denominator negative वो भी हो सकता है. तो इसको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप इज यू फैक्टराइज. इसको कैसे फैक्टराइज करोगे? 2 5 10. तो 2x square plus 5x minus 2x minus 5 and then this is 60. 2x square minus 20x plus 3x plus 30. So I get x common 2x plus 5 minus 1 2x plus 5, and here I can take 2x common x minus 10. Oh sorry, ये स्प्लिट मैंने गलत कर लिया. माइनस है एंड प्रोडक्ट ओवरऑल प्लस आएगा, तो ये दोनों ऐसा नहीं होगा. 17 है तो आई हैव टू टेक 2 माइनस या 2 प्लस. 2 प्लस तो नहीं ले सकता, 2 माइनस लेंगे तो 12 एंड 5. तो 2x हो गया x माइनस 6 and then this is minus 5 x minus 6. So now it breaks down to 4 factors. X minus 1 into 2x plus 5 divided by 2x minus 5 into x minus 6. This is less than 0. So the overall sign of this expression depends on 4 things. अब मान लो मैं डिनोमिनेटर को लेकर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता RHS में, तो वो दोनों चीज का जो साइन कॉन्ट्रीब्यूशन तो चेंज हो गया. So what you do is first multiply the two components of the denominator in the numerator. So write it in this way: x minus 1 into 2x plus 5 into 2x minus 5 by x minus 6 divided by 2x minus 5 whole square x minus 6 whole square. This is less than 0. Now you can take this and multiply. So I get x minus 1 into 2x plus 5 into 2x minus 5 into x minus 6 is less than 0. तो यहाँ पे तुम्हारा रूट्स आ गया 1 minus 5 by 2 plus 5 by 2 and 6. Plot the roots. And check with x is equal to 0, does it satisfy?
x को 0 पुट किया तो मेरा -5/30 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. I got the range. Simple question or not? Think about this. How to approach this? Is this a simple question or not? Once you get this, then you look at what the question is saying. Question is saying number of integral values. तो कितने integral values है? -5/2 से 1 के बीच में -2, -1, 0, and 5/2 से 6 के बीच में 3, 4 and 5. 6. Hope it is making sense. How to solve this? तो ये solutions तुम्हें मिल जाएंगे, but these are like small fundamentals of inequality that directly don't multiply the denominator. पहले उसको factorize करो. Consider the contribution of all factors. Once you have considered the contribution of all factors, then it becomes like easier for you to take and multiply. But नहीं तो directly multiply किया तो सीधा ignoring the case that the denominator might be negative and numerator is positive. तुम अगर ये multiply किए तो तुम क्या solve करोगे? Only numerator is negative, which is only half partial answer. Yeah. Take a look at this one. I'll solve half of the questions. Shreya, these questions take a lot of time though. Yes, they do take a lot of time. Factorize करना है especially, and these are all round 2 questions. ठीक है Shreya? Round 2 में ये सब करेंगे. Round 1 में don't solve these questions. Okay, round 1 questions देख के पता चलेगा. अभी तक तो कोई round 1 question मेरे को दिखा नहीं. Maybe the first clock question could have been round 1. This is also can be a round 1 if you are strong in base system, but not this. This can be a round 1 question. बट अगर माइंड में स्ट्राइक कर गया तब जाके राउंड 1, नहीं तो फिर ये ट्राई करते रहेंगे. पाइथागोरस होगा नहीं होगा. ज्योमेट्री पर्सनली आई डोंट कीप इन राउंड 1, इट इज राउंड 2 फॉर मी. मेंसुरेशन आई कीप इन राउंड 1. टाइम तो लगेगा. सी डोंट वरी अबाउट टाइम. टाइम के बारे में डोंट वरी टू मच बिकॉज यू कैन स्पेंड 3 मिनट्स अप टू 3 मिनट्स इन अ क्वेश्चन. 10 मिनट अगर सारे क्वेश्चन में पढ़ूँ, 10 क्वेश्चन आई विल सॉल्व, 3 मिनट्स पर क्वेश्चन, स्टिल आई एम एट 10 क्वेश्चन. तो दैट्स नॉट अ बैड स्कोर. एंड सारे क्वेश्चन 3 मिनट लगेंगे नहीं, उससे ज़्यादा तुम क्वेश्चन कर ही लो. नॉट एवरी क्वेश्चन विल बी इक्वली टफ, बट हाँ यू नीड सम प्रैक्टिस एंड एक एग्जैक्ट अप्रोच माइंड में. जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी तुम फिगर आउट करो कि इसको फैक्टराइज करना है. So when we are reading inequalities, it is imperative that you solve these kind of questions before. Okay. All right. Let us see this. Two men P and Q started walking towards each other simultaneously from two places K and L. तो TSD का क्वेश्चन है. तो यहाँ पे K है एंड यहाँ पे L है. Two men P and Q started walking towards each other simultaneously from two places K and L respectively, which are 200 kilometers apart. They met after 10 hours. 10 घंटे बाद मिले. After meeting, P reduced the speed by 2 kilometers per hour and Q increased the speed by. तो इसका स्पीड मेरे को नहीं पता है. मान लो P का स्पीड है P एंड Q का स्पीड है Q. तो ये 10P हो गया एंड ये 10Q हो गया क्योंकि दोनों 10 घंटे के लिए ट्रैवल किए. आफ्टर मीटिंग P reduced the speed by 2 kilometers and they arrived at L and K respectively at the same time. Okay. The time taken by P to cover distance, मान लो KL, मान लो this point को मैं M लेता हूँ, ML distance. So 10Q is the distance and speed of P is P minus 2 is equal to 10P by Q plus 2. ये है इक्वेशन. Time taken and they arrived at L and K respectively at the same time. Find the initial speed of P. Again a standard TSD का क्वेश्चन है. इसमें एक फॉर्मूला भी है. यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. टाइम टेकन टू मीट ईच अदर इज द
square root of the product of the time taken by both of them to reach their respective destinations after they have met. ओके एंड क्योंकि एक साथ मीट कर रहे हैं, एक साथ डेस्टिनेशन में भी पहुंच रहे हैं, तो इन दिस केस आई कैन से T1 इज इक्वल टू T2. ओके, लेट अस से इज इक्वल टू स्मॉल t. तो यहाँ पे 10 घंटा लग रहा है, मतलब इस यहाँ पे भी 10 घंटा ही लग रहा होगा. समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर मिलने के लिए 10 घंटे, एक साथ डेस्टिनेशन भी पहुंच रहे हैं, तो ये भी 10 आवर्स. तो इनिशियल स्पीड ऑफ p, तो मैं p को बोल सकता हूँ p टोटल फर्स्ट 10 आवर्स, देन स्पीड रिड्यूस करके अनदर 10 आवर्स. तो p ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा. यहाँ पे इसको भी 10 आवर्स, इसको भी 10 आवर्स, तो अब निकल जाएगा. एंड और एक फॉर्मूला भी है S1 by S2 इज स्क्वायर रूट ऑफ T2 by T1. इसको भी सॉल्व कर सकते हैं. तो दिस इज अगेन अ मस्ट सॉल्व क्वेश्चन, बिकॉज ये TSD का एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क वाला क्वेश्चन है. व्हेनेवर वी सॉल्व TSD क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम बार बार करते रहते हैं. ओके, तुम यहाँ पे इनिशियल स्पीड ऑफ इसको p ले लो, तो p इंटू 10 प्लस p माइनस 2 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 200. तो फिर यहाँ से p आ जाएगा 10p एंड यहाँ पे 10p, 20p इज इक्वल टू 180. तो p आ जाता है 9, सॉरी p आ जाता है 11. 20p इज 220, तो p आ जाता है 11. तो 10 घंटा 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, एंड फिर अनदर 10 आवर्स 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, टोटल 200 किलोमीटर होगी. इजी क्वेश्चन. जस्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करो. इफ यू नो दिस फॉर्मूला, दिस इज लाइक अ 1 minute क्वेश्चन. So that is why I said you have to have enough practice to look at this, see the answer versus finding the answer. The moment you draw the diagram, you should be able to see the answer. Okay, this is how I am going to process the question. अगर वो क्लियर है तो आंसर आ ही जाएगा. अगर वो क्लियर नहीं है, just go to the next question. If you want to spend time, it should be round 2. राउंड 1 में मान लो ये पहला क्वेश्चन एग्जाम है, इस पर लगे मत रहो, तो इसको 2 मिनट हो जाएगा. If you will not be able to solve this, pressure will automatically be built up. That is not advisable in the exam. ठीक है, होप दिस मेक सेंस. देन दिस इज अ सिंपल रैशनलाइजेशन क्वेश्चन. ये और मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ये आराम से कर लोगे तुम लोग. रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, सिंपल. ओके, जस्ट रैशनलाइज कैसे करोगे? मल्टीप्लाई द कॉन्जुगेट सर्ड, मल्टीप्लाई द कॉन्जुगेट सर्ड on the denominator and numerator. तो रूट 3 प्लस 1 है, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1, रूट 5 प्लस 3 है, रूट 5 माइनस 3, रूट 5 प्लस 3. तो ये रूट 7 प्लस 5 है, रूट 7 माइनस 5, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो एंड गो ऑन. आराम से रैशनलाइज हो जाएगा. तो यू कैन डू दिस. ओके, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन, एंड ये भी करना चाहिए. थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, मतलब 2 मिनट्स में. इट्स नॉट लेंथी, मतलब डिफिकल्ट, लेंथी, क्योंकि इतने सारे टर्म्स है, जस्ट थोड़ा सा लेंथी है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं. ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंस देखो, सारे डिनोमिनेटर में 2 ही आएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 3, रूट 3 is 3 एंड 1, 3 माइनस 1 2. तो ये रूट 3 माइनस 1 बाई 2, रूट 5 माइनस रूट 3 बाई 2, रूट 7 माइनस रूट 5 बाई 2, and so on, root 81 minus root 79 by 2, and overall 1 by 4. तो ये 1 by 8 हो गया. रूट 3 माइनस रूट 1 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 7 माइनस रूट 5 and so on. So everything will get cancelled out. 1 by 8 and root 81 is 9 minus 1. तो इतना आना चाहिए, समथिंग लाइक दिस. So none of these. सिंपल रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है. ओके, होप इट इज मेकिंग सेंस. कैसे सॉल्व करोगे? People attending live, do like the session, and I hope all of you have like given this test. If not, do participate in the All India mock test.
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखो आ रहे हैं, गुड मिक्स ऑफ क्वेश्चन. ऑल दिस क्वेश्चन आर वेरी क्वालिटेटिव क्वेश्चन एंड यू शुड सॉल्व देम. डजंट मैटर तुम्हारा एग्जाम में हुआ नहीं हुआ, बाद में हो रहा है नहीं हो रहा है, ट्राई एंड लर्न. ओके, ट्राई एंड लर्न की एक बार मैं क्वेश्चन कर लूँ, उसका आंसर देख लूँ, फिर तो एक आइडिया बनेगा माइंड में. आई कुड हैव सॉल्व दिस और नॉट. इफ आई कुडंट, व्हाई, हाउ शुड आई थिंक ऑन दिस क्वेश्चन एंड ऑल. ये धीरे 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 तुम्हारा डेवलप हो. ओके, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच इज रियल एंड डिस्टिंक्ट. जैसे रियल डिस्टिंक्ट दिखा तो क्या करना चाहिए, तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, और 16 इज ग्रेटर देन 4k और k इज लेस देन 4. पहला रिजल्ट आ गया. द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स इज अटमोस्ट 8. तो यहाँ पे रूट्स मान लो अल्फा बीटा है, लेट रूट्स आर अल्फा बीटा. द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज अटमोस्ट 8, एंड क्योंकि स्क्वायर नंबर है ग्रेटर देन 0 भी होगा. हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k आर पॉसिबल. एक चीज यहाँ पे देख लो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 4 एंड अल्फा बीटा का वैल्यू है k. तो हाउ मच इज अल्फा माइनस बीटा, पहले वो चेक कर. कैन आई राइट अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज लाइक अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. So it is like 16 minus 4k. So 0 less than equal to 16 minus 4k less than equal to 8. फिर इसको सॉल्व करके k का इंटीग्रल वैल्यूज निकल जाएगी. अगेन यू कैन कैलकुलेट दिस, बट सोच रहे हो हाउ एम आई अप्रोचिंग द क्वेश्चन. व्हेन आई रीड द क्वेश्चन हाउ आई शुड थिंक. आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट प्रोसेस विथ यू. जब क्वेश्चन पढ़ते जाओगे तो सोचते जाओगे, अच्छा रियल डिस्टिंक्ट बोला है, मे बी समथिंग टू डू विथ. व्हेनेवर इन अ क्वाड्रेटिक इट टॉक्स अबाउट नेचर ऑफ रूट्स, you have to go with discriminant, and then sum of roots, product of roots. ये तीन चार चीज ही यूज होता है थ्रू आउट ऑल क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक. मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन माइनस b बाई 2 है जो आता है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट, बस यही सब चीजें यूज होगा. ओके, वैसे करके you need to try the rest of the questions. I don't know whether you have gone through the analysis of the rest of the questions or not, but this should be your approach. Like when the exam is over, you have to sit back and you have to go through all the questions. ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल इक्वेशन में, वेरी सिंपल क्वेश्चन. रेशियो पुट करोगे एंड आराम से इसको कर सकते हो. दिस इज अगेन अ डूएबल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है, सिमिलरली दिस वन, पॉलीगॉन का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे क्वेश्चन नंबर 14 में. इफ यू डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला ऑफ पॉलीगॉन, आंसर आ जाएगा. क्या दिया, एक्स एंड वाई बी टू रेगुलर पॉलीगॉन्स, एक्स एंड वाई साइड्स. इफ वाई इज इक्वल टू 3x and each interior angle of y is 10 by 9 times each interior angle of x. So interior angle of a regular polygon, so n minus 2 into 180 degrees divided by n, जहाँ पे n तुम्हारा नंबर ऑफ साइड्स है. तो पहला पॉलीगॉन में तुम्हारा आएगा x minus 2 into 180 degrees by x, एंड सेकेंड में आएगा 3x minus 2 into 180 degrees by 3x. ये इसका इंटीरियर एंगल, ये सेकेंड वाले का इंटीरियर एंगल, एंड इंटीरियर एंगल ऑफ y मतलब दिस इज 10 by 9 times द इंटीरियर एंगल ऑफ x. बस सॉल्व कर देना है, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x. मतलब दिस इज इक्वल टू जस्ट सिंपल इक्वेशन. दैट इज आई सेड, इफ यू नो द फॉर्मूला दिस इज लाइक अ वेरी इजी क्वेश्चन. दिस इज इक्वल टू 10 by 9 times ऑफ x by 2. So 180 x and x cancels out, 3. बस अभी सॉल्व कर लो. 9x minus 6 is equal to 10x minus 20. X is equal to 14. Then the ratio of each exterior angle to each exterior angle of this polygon with y minus x side. Exterior angle का sum is always 360 degrees.
sum of exterior angles is always 360 degrees. कोई भी पॉलीगॉन में, तो अगर रेगुलर पॉलीगॉन है, this implies each exterior angle is like 360 degrees by n. समझ रहे हो? each exterior angle will be 360 degrees by n. So this is how you approach. मतलब you need to know the fundamentals first and फिर आराम से करोगे. x तो मेरा यहाँ पे 14 आ गया, बस इसके बाद सॉल्व कर देना, अब बन जाएगा. Make sense? The questions are not difficult. Mocks में, even actual exam, you will see 12 से 14 questions will be on the easier side. Always you will see it in the actual exam. 12 से 14 questions will be on the easier side. All you have to do is identify. अगर identify कर लिए तो आराम से बनेगा. Identify कैसे करोगे? If you are good in all sections. If you are good in all sections, you will be easily able to identify. नहीं तो difficult है. ठीक है? तो 5-6 क्वेश्चन है, इसका देख लेना, सोल्यूशन भी समझ जाओगे आराम से, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. So the purpose of the session, I hope all of you got an idea how to think about these questions. सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है. इन दैट वे इफ यू सी ऑल द चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट एंड तुम अगर कोई सेक्शन स्किप कर रहे हो तो यू कुड फील द डिफरेंस व्हेन यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन इन द एग्जाम. जैसे ये देखो, दिस ग्राफ, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिररिंग ऑफ ग्राफ, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. मिररिंग में दो टाइप के इमेज होते हैं, एक मिरर इमेज, एक वाटर इमेज. तो ये एफ ऑफ ए का ग्राफ दिया है. दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ ए. तो एफ ऑफ ए इज ए स्क्वायर प्लस 4a. दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ए स्क्वायर प्लस 4a, अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूं, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4a, इसका ग्राफ बनेगा कैसे? ए स्क्वायर प्लस 4a इज इक्वल टू 0, ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0, so a is equal to 4 and a is equal to minus 4, 0 and minus 4. So the graph is something like this. ये 0 है, ये minus 4 है. Upward u because a का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है. This is the graph. But तुम यहाँ पे देखो ग्राफ में हुआ क्या है. मतलब this is your actual graph. But ये पार्ट नीचे आ गया है, ये पार्ट भी नीचे आ गया है. ट्रेंड रिलेट. तो नीचे कब आता है? वाटर इमेज हुआ है. वाटर इमेज कब होता है? जब मैं पूरा फंक्शन को नेगेटिव लेता हूं. बट इन दैट केस ये ऊपर जाना चाहिए था, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाना चाहिए था, बट इट स्टेज एज इट इज. तो बेसिकली क्या होगा, पहले मैं मॉड लिया होगा तो ग्राफ ऐसा हो गया होगा, ओवरऑल मॉड का माइनस हो गया होगा, तो पूरा ग्राफ नीचे आ गया. जब मॉड ले लोगे तो द ग्राफ विल बी लाइक दिस. एंड फिर उसका नीचे मिरर इमेज, सॉरी वाटर इमेज. मिरर इमेज मीन्स लैटरली लेफ्ट राइट लेफ्ट होता है, दैट इज मिरर इमेज. वाटर इमेज मीन्स वर्टिकली इनवर्ट. तो वाटर इमेज ऑफ मॉड एफ ऑफ ए ऑप्शन. सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ. बहुत लोग ग्राफ देख के डर जाते हैं, छोड़ देते हैं. अगर तुम ग्राफ का बिल्कुल कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें ये डर लगेगा सॉल्व करते टाइम. बट अगर तुम ग्राफ का क्वेश्चन पहले थोड़ा बहुत सॉल्व कियोगे, सच एन इजी क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, हार्डली तुमको 30 सेकंड 1 मिनट लगेगा. मस्ट टू डू क्वेश्चन. तो योर लाइक एबिलिटी टू सिलेक्ट क्वेश्चंस ओनली विल गो अप इफ यू आर रीडिंग ऑल द चैप्टर. तुम अगर पहले से चैप्टर छोड़ दोगे तो यू हैव लिमिटेड ऑप्शन. एंड यहाँ पे कुछ टाइम एंड वर्क सीएसडी क्वेश्चंस व्हिच आर जेन्युइनली डिफिकल्ट, वहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा. अगर उसी पे ही लगे रहे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा. मेक सेंस? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बस जानने चाहिए. लाइक यू विल नॉट टेक मच टाइम टू अंडरस्टैंड. हाफ एन आवर, 1 आवर, लेट्स से 1 घंटा तो दे ही सकते हैं. नोबडी इज आस्किंग अस टू बिकम एक्सपर्ट. एक्सपर्ट नहीं चाहिए. हाँ, एक्सपर्टीज के लिए यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. वी डोंट नीड दैट.
We just need to be aware of the particular concept. तभी जाके अपना selection of questions will be better. I'll be at a place to decide can this be solved in 3 minutes or not. But if I don't know the concept of the choice है ही नहीं, जो आएगा जितना टाइम लगे करना तो पड़ेगा, because I cannot solve the other areas because I have skipped them. So don't go by that approach. अभी भी टाइम है, सब एरिया से छोटे छोटे चैप्टर्स तुम पढ़ लो, जो बेसिक है उसको पढ़ लो, एंड जो चैप्टर भी नहीं पढ़ो while giving the mocks, जब एनालिसिस करो वहां से भी you can learn a lot of things quickly you can learn a lot of things. So have a positive approach पहले माइंड में that I can do this. Okay, anytime something goes wrong या कोई क्वेश्चन नहीं होता, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव टू अगेन गो बैक एंड पूरा चैप्टर सब पहले से बैठ के पढ़ना पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं है. देयर विल ऑलवेज बी क्वेश्चन जो नहीं होगा. Nobody in this world can guarantee that I can solve any question that comes from a chapter. You can try, but there is no guarantee. Okay, but your chances of getting it solved will go up only with practice and a positive approach. If you are positive in your thought process, if any question comes that you are not able to solve, you will feel like okay, I learned something new. But अगर तुम पहले से ही प्रेशर ले लोगे यार 20 दिन रहा एग्जाम अभी भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो एंटायर पर्सपेक्टिव चेंजेस. इट विल जस्ट ऐड टू योर प्रेशर एंड और भी टेंशन होगा और भी डर लगेगा. तो नेवर बट डू दैट. नहीं हुआ क्वेश्चन, ठीक है, क्यों नहीं हुआ देखते हैं, उसका आंसर देखते हैं और एक टेस्ट देते हैं. लेट्स ट्राई टू इम्प्रूव माई सिलेक्शन. फिर से नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते हैं. कीप ट्राइंग. व्हाट एल्स कैन वी डू? वी कैन ओनली ट्राई एंड सी व्हाट इज गोइंग रॉन्ग. बार बार अगर एक चीज को हम आइडेंटिफाई कर लिए तो विल नॉट रिपीट इट ऑब्वियसली. ठीक है. तो नेवर स्टॉप ऑन गिविंग मार्क्स. डीआईएलआर का एनालिसिस भी युवराज हो गया. दिस वाज द लास्ट पार्ट. ठीक है. वंस दिस इज ओवर युवराज यू कैन चेक फॉर द एंटायर एनालिसिस. पहले वीआरसी था, देन डीआईएलआर एंड देन ओके. So that is it from my end for this session. Hope you guys took some insights. So you have to analyze. Don't think that ये मेरा analysis is enough for you. Analysis हम जो कर रहे हैं to give you an idea how you should think about the section. कैसे सोचना चाहिए. सबका अलग अलग attempt रहा होगा पक्का जिस section में. Somebody might have solved some different questions और कोई और कुछ questions किया होगा. जो ये पहला candidate जो skip किया होगा, maybe second candidate has solved some other questions. तो सबका approach and attempt अगर अलग है, analysis भी अलग होगा, same नहीं हो सकता. बट हाँ, एक स्टैंडर्ड पैटर्न जो है, फर्स्ट नो ऑल द आंसर, देन थिंक शुड आई सॉल्व दिस और आई शुड हैव स्किप्ड दिस, शुड आई ट्राई दिस और मे बी आई शुड नॉट, शुड आई सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक और शुड आई नॉट, इज दिस अ टॉपिक वर्थ ट्राइंग इन द एग्जाम और इज इट नॉट, if these kind of questions come in the exam should I give it an attempt or not, how would I know it is this kind of a question. ये थॉट प्रोसेस तुमको बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट. कीप सॉल्विंग and keep practicing. फिर से AIMT है day after tomorrow, so all the best for that. Do participate and again जो उसका mock analysis form होगा उसको participate करना, उसमें देखना क्या faculty members inputs दे रहे हैं and try and like imbibe those inputs in your approach. You'll definitely find the best. Thank you once again all of you. Good night and see you. Bye bye. Shreya, pipe का question, just a second. Pipe का question, which one? This one, 16 I think. Shreya, you mean 16. Let's see this one. N the number of pipes D1 D2 till Dn where n is greater than 5. So 5 से ज़्यादा pipe are attached to a tank. Okay, 5 से ज़्यादा pipes are attached to a tank. Now we don't know how many pipes are exactly there. Now the rate of draining of Di where I greater than 1 is equal to twice the combined rate of draining of all the lower numbered pipes. ये सब drain pipes है. ठीक है. If the time taken by D8 to drain the tank is 5 minutes. ठीक है. Then determine the time taken by D1, D2, D3 and D4 together to drain the full tank. तो पहले rate of draining देखो. Rate of draining of Di I greater than 1, मतलब मान लो rate of draining of D2 is twice the rate of draining of D1. D3 is equal to twice of D1 plus D2, twice of all the lower number pipes. D4 is twice of D1 plus D2 plus D3. Similarly, D5 is twice of D1 plus D2 plus D3 plus D4.
रेट ऑफ ड्रेनिंग कितना काम करते हैं. तो इफ द टाइम टेकन बाय D8 तक अगर मैं इसी पैटर्न में गया, ठीक है, D8, तो इट इज लाइक ट्वाइस ऑफ D1 से लेके D7 तक, एंड D8 लग रहा है उसको 5 मिनट्स. तो D1 से लेके D7 इनको लगेगा 10 मिनट्स. अब ये इक्वेशन देखो कैसा हो रहा है. मैं D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8. So D8 is equivalent to twice of this. ठीक है, ये 7 पाइप जितना काम करेंगे, D8 उसका डबल काम करेगा. तो अगर D8 को 5 मिनट्स लग रहा है, तो ये 7 पाइप्स को कितना मिनट लगेगा? ये 7 पाइप्स D8 का आधा काम करेंगे, तो उनको डबल टाइम लगेगा, तो 10 मिनट्स. अब सेम लॉजिक अप्लाइज हियर. तो बेसिकली ये टोटल टाइम देखो, ये 10 मिनट्स 15 मिनट्स, जिसमें इसको तुम 1/3 एंड बाकी को 2/3 दी. तो यहाँ पे D1 टू D7 अगेन उसी लॉजिक में 1:3, मतलब 1:2 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि D7 जितना काम करेगा, ये D1 टू D6 उसका ट्वाइस टाइम लेंगे. ये जितना टाइम लेगा ये उसका डबल टाइम लेंगे. और आई कैन राइट D7 एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ D7. तो थ्राइस ऑफ D7 इज लाइक 10 मिनट्स, मतलब 3 D7 पाइप होंगे 10 मिनट्स. तो एक D7 पाइप को कितना टाइम लगेगा ना? 30 मिनट्स. D7 को अगर 30 मिनट्स लगा, तो D1 से लेकर D6 को कितना टाइम लगेगा? उसका डबल, तो 60 मिनट्स. तो उसी हिसाब से तुम एक एक नीचे आके यहाँ तक पहुंच सकते हो. D1, D2 एंड D3. D1 से D6 हो गया, फिर अगेन D1 टू D5, तो इट इज लाइक 3 टाइम्स D6 इज 60 मिनट्स. तो एक D6 हो जाता है 180 मिनट्स. तो D1 टू D5 आ जाता है 360 मिनट्स. मेक सेंस? कैसे वो आगे आगे जा रहा है. तो इजी क्वेश्चन अगेन, नॉट अ डिफिकल्ट वन. एंड यहाँ पे बहुत कुछ वेरिएबल लेके सॉल्व नहीं करना है, जस्ट ट्राई एंड ऑब्जर्व द पैटर्न कैसे सॉल्व करो. बस इसी पैटर्न में जाओगे, आ जाएगा आंसर. ओके, तो डेफिनेटली ये इसका डबल से तो ज्यादा होगा. तो 540 ये तीनों तो नहीं होगा, तो 810 हैज टू बी द आंसर, क्योंकि यहाँ पे ही 360 आ गया. इसका जब नेक्स्ट करेंगे तो फिर डबल हो जाएगा इससे, तो ऊपर ही आएगा 810. ओके, अगेन राउंड 2 क्वेश्चन. यस, दिस इज अ राउंड 2 क्वेश्चन. दिस इज अ राउंड 2 क्वेश्चन. तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, टाइम एंड वर्क है. सी, जब एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, तुम्हें देखना है तुम्हारा कौन सा एरिया में कंफर्टेबल तुम हो. टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन तो आएंगे. एंड देन मिक्सचर एलिगेशन का 1 क्वेश्चन, एटलीस्ट मिनिमम 2 क्वेश्चन. लॉग 1 to 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही आएगा. तो ये थोड़े एरिया, थोड़ा इसमें स्ट्रांग बनो. इसमें इवन इफ इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, यू शुड बी एबल टू सॉल्व, क्योंकि पता है यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आगे आएगा, पता है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 1 क्वेश्चन तो आगे आएगा. एपी, जीपी में स्पेशली एक क्वेश्चन आ गया. देखो जीपी में आ गया एक क्वेश्चन. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेके एक क्वेश्चन तो बनता है, आएगा जैसे भी. ठीक है, तो ये सम प्रेडिक्टेबल एरिया जो शुड बी स्ट्रॉन्ग एट, बाकी डिपेंड्स. ओके, ऑल राइट देन. चलो, थैंक यू एवरीवन. Keep solving. We'll meet again hopefully in another session. But all my good wishes with all of you, and hope you guys like the class. People new to the session or channel, do subscribe to the 99 percentile club channel. Like the session, share it with your friends, and ask them to participate in the all India mock test November 6th को जो हो रहा है. And thank you. Okay, see you in the next session.